Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Rama, Ram Rama. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Haribol, Gaura Haribol. Nitai Gaura Haribol, Gaura Haribol. Nitai Gaura Premanande Ki Jai. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvesesa Sunyavadi Paskatya Desatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Maha Mantra Ki Jai. Srila Prabhupada Patita Pavani Ki Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai. Gaura Premanandi, Haribo, Haribo. Oh, yeah, just. Thank you. So I'm sorry I'm not coming down for the morning program. I have a few body problems, but it's getting better. So maybe tomorrow I can do that. महाराज जी कह रहे हैं कि कल आप लोग सब जो हैं प्रातः कालीन कार्यक्रम में जरूर आएं क्योंकि महाराज जी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे. Whenever you get older, every day there's a new pain. महाराज जी कह रहे हैं कि उम्र हो गई है जिसकी वजह से शारीरिक कुछ पीड़ा हो रही है. That's just to remind us that we're not immortal in this body. ये सिर्फ हमें स्मरण दिलवाता है कि हम इस शरीर में नित्यवास नहीं करने वाले हैं. But we can tolerate these things knowing that our soul is eternal. सहिष्णु होते हुए और यह विश्वास करते हुए कि हम नित्य जीव हैं, हम इन चीजों को टॉलरेट कर सकते हैं. So nobody is going to survive in this body. कोई भी शरीर में नित्य नहीं रह सकता. But the karmis, the so-called scientists, they're trying to make the body immortal. लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं और जो वैज्ञानिक लोग हैं वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि शरीर को वो नित्य बनाएं. All their efforts are silly and stupid. अमर बनने का यह प्रयास उनका ये मूर्ख प्रयास है. One of the methods is called cryonics. क्रायोनिक्स नाम का एक ऐसा ही तरीका है. They freeze you right before you die. जहाँ पर आपकी मृत्यु के बिल्कुल पूर्व, मतलब जब मरणासन है उस समय आपके शरीर को बर्फ में रखा जाता है. I hope none of you ever do that. आप में से कोई ऐसा ना करे ऐसे आशा रखते हैं. But a lot of people in America do that. They get their body frozen in nitrogen. बहुत सारे अमेरिकी लोग जो हैं वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि नाइट्रोजन नाम के एक पदार्थ से अपने शरीर को बिल्कुल अजर अमर रखने का प्रयास कर रहे हैं. And it costs a lot of money. और इसके लिए बहुत उन्हें पैसा भी खर्चा करना पड़ता है. Just to freeze you costs $150,000. सिर्फ अपने आप को कुछ समय के लिए पूरी तरह से बर्फीले स्थिति में रखने में आपको करीबन 10 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है. If you go up to the Himalayas in the winter time, you can do it for free. अगर आप हिमालय में जाएं तो ये मुफ्त में हो सकता है. So the first company that started this in California, this freezing and trying to preserve the body, and the idea is once science improves, they will solve the problem of death, and then they'll unfreeze you and heal you, and you'll be immortal. तो वो आपको ये जो लोग ऐसा तकनीक इस्तेमाल करते हैं वो आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अभी आपको बर्फीली स्थिति में अजर स्थिति में रखा जाएगा और फिर जिस दिन हमें एक तरीका मिल जाएगा हम आपको फिर से उसमें से उस स्थिति में से बाहर निकाल कर आपको फिर से सजीव कर देंगे. But guess what? That company went bankrupt. लेकिन जिस कंपनी ने ऐसा कहा था उसको कंपनी का दिवाला निकल गया. They turned the electricity off. और अब उनका जो भी उन्हें करंट दिया जा रहा था काम करने के लिए उसे बंद करना पड़ा क्योंकि उसका पास पैसा नहीं था. And lo and behold, everyone got unfrozen and they were all dead. और अब क्योंकि वहां पर करंट ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो जो भी वहां पर बर्फीले स्थिति में रखे गए थे वो सब जो हैं अब सड़ रहे हैं. This is how silly and stupid people are. इस प्रकार से लोग अति मूर्ख विचार और व्यवहार करते हैं.
So today I'm going to speak about a very special topic. I'm writing a book, it's almost finished, about the misconceptions that have adversely impacted Vedic Dharma. तो आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे कि वैदिक धर्म के बारे में जो कुछ गलत धारणाएं हैं उसके बारे में उसका हम कैसे उसका उत्तर कैसे दे सकते हैं. So, number one and worst of all the misconceptions is Mayavad philosophy. सबसे बड़ा जो गलत धारणा है वो है उसे मायावाद सिद्धांत के रूप में सूचित किया जाता है. So Mayavad philosophy, first of all, you have to know what the word Mayavad means. सबसे पहले मायावाद शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे. It means that Vad means you worship Maya. You worship something that is false. It's not true. उसका अर्थ यह है कि आप ऐसे किसी तत्व की पूजा करते हो जो सही नहीं है. So, what are they worshiping that's false? तो जो मिथ्या है वो कौन सी चीज है जो मिथ्या है जिसकी पूजा उपासना करने की बात कही जा रही है. They are, this is what the Mayavadis say. Their philosophy is called Kevala Advaita. तो ये जो मायावादी लोग होते हैं जो इस सिद्धांत का पालन करते हैं उस सिद्धांत को वो केवल अद्वैत सिद्धांत कहते हैं. Kevala Advaita means there's only one thing, nothing else, one thing only. अर्थात सिर्फ एक ही सत्य है और जो वो कहते हैं वही सत्य है, उसके अलावा कोई और सत्य नहीं है. And that is the Brahma Jyoti. और वो है ब्रह्म ज्योति. So by saying this, they begin what's called cancel culture. कैंसल कल्चर नाम का एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है जो उन्होंने शुरुआत की है ऐसे मायावादी लोगों ने. So what are they canceling? तो किस चीज को वो कैंसिल करें अर्थात किस चीज को ठुकरा रहे हैं. Number one, they say the whole material world is Maya. It doesn't really exist. सबसे पहली बात कि सारा विश्व जो है या सृष्टि जो है वो माया है. So what you're seeing now, it's not real. तो जो भी आप अभी देख रहे हैं आपके चारों ओर वो कोई भी सत्य नहीं, असत्य है. This is according to them. This is according to their believing something that's not true. ये हमारी मान्यता नहीं है, ये उनकी मान्यता है और ऐसे चीज को मान रहे हैं जिसका कोई जो मिथ्या है. So one time I was giving a lecture like this, and someone raised their hand and said that it is true that everything's an illusion. तो एक बार महाराज जी प्रवचन कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने हाथ उठाकर कहा कि ये तो वास्तव है, सही है कि ये संपूर्ण विश्व जो है वो एक भ्रम है, मिथ्या है. So I picked up a chair and started running toward him. तो I महाराज hit जी him with the chair, एक ऐसे ही कुर्सी उठाकर उसके पीछे दौड़ने लगे and he went like this. No, don't do that. और वो ऐसे करने लगा अपने बचाव में. I said, I thought you said everything's illusion. तो उस समय महाराज जी ने कहा कि अरे आप ही ने तो कहा था कि सब कुछ भ्रम है, मिथ्या है. You see, they're all crazy people. They've gone crazy. तो So, yeah. वो कुर्सी मिथ्या नहीं थी उसके लिए और इससे पता चलता है कि कितने मूर्ख लोग हैं. So second thing they say is jivas do not exist. That's another illusion. दूसरी बात जो गलत वो कहते हैं वो ये है कि ये जीव जो है इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है, वो भी एक मिथ्या है. So one time I saw this man meditating. एक बार महाराज एक व्यक्ति को ध्यानग्रस्त अवस्था में देखे. And he had a cigarette in his hand. ध्यान अवस्था में बैठे हुए उसके हाथ में एक सिगरेट, जलती हुई सिगरेट भी थी. So you know you meditate like this, and he had a cigarette here, and the smoke was coming up. तो इस प्रकार से आसन में बैठे हुए थे पद्मासन में और उनके हाथ में ऐसे सिगरेट जो था फंसा हुआ था. And he was sitting like a yogi and holding a cigarette. And I came up to him. I said, "Excuse me, sir. Why do you have a cigarette in your fingers while you're meditating?" तो ऐसे योगी के समान बैठा हुआ था लेकिन सिगरेट भी उसके उंगलियों में फंसी हुई थी. तो महाराज जी उनके पास गए और कहा कि
महाराज साहब आप ऐसे एक सिगरेट लेकर क्यों बैठे हुए हैं? He didn't open his eyes. He said, "Get away from me." उनके नेत्र बंद ही थे और उन्होंने ऐसे गंभीर स्वर में कहा कि मुझसे दूर चले जाओ. So I said, "Hare Krishna, why?" And he stopped me. He said, he opened his eyes and said, "Oh no, you're a Hare Krishna. Go away." तो फिर महाराज ने कहा कि नहीं नहीं मतलब आप क्यों? तो उन्होंने काट दिया उनको, महाराज को आंख खोल लिया और आंख खोलकर जब महाराज को देखा, अरे बाप रे, आप हरे कृष्णा वाले हो, चले जाओ चले जाओ. I said, "But why do you have a cigarette in your hand? Why are you smoking a cigarette?" तो महाराज भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे उनका. He said, उन्होंने पूछा कि आपके हाथ में सिगरेट क्यों है? he said, "You don't understand anything about philosophy." वो कहने लगे, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है कि सिद्धांत क्या होता है. Your guru and your philosophy is wrong. तुम्हारे गुरु और तुम्हारा सिद्धांत ये सब गलत है. I said, "But why are you why are you smoking the cigarette?" लेकिन महाराज फिर भी पीछा नहीं छोड़े थे. वो पूछ रहे थे कि सिगरेट क्यों आपने पकड़ी हुई है? He said, "I am not smoking." उन्होंने कहा, मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूं. See, you don't understand anything. देखो तुमको कुछ पता नहीं है. I said, "How can you say you're not smoking?" आप सिगरेट पी नहीं रहे हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं? It's my body, it's not me. मेरा शरीर पी रहा है, मैं नहीं पी रहा हूं. He said, "See, you don't understand any philosophy." देखो तुमको कुछ ज्ञात नहीं है कि सिद्धांत क्या होता है. This is how crazy people are. ये देखिए उनकी मूर्खता है, पागलपन है. Mayavad philosophy makes you crazy. ये मायावत सिद्धांत आपको पागल बना देता है. So then why did Sankaracharya, who's an incarnation of Shivaji, and Shivaji is number one devotee of Krishna, why did he teach Mayavad philosophy? He wrote the Sarirakbhasya commentary on Vedanta Sutra and presented Mayavad philosophy. तो मान्यता ये है कि शिव जी ने ये सिद्धांत जो है दिया हुआ है. तो प्रश्न ये उठता है कि जब वो परम वैष्णव है तो उन्होंने ये सिद्धांत क्यों दिया? He was ordered to do it by Narayana. भगवान नारायण ने उन्हें आदेश दिया था कि वो ऐसा करें. Because 2,500 years ago, Lord Brahma came. Lord Brahma came 2,500 years ago. 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व ब्रह्मदेव आए थे. And he was a Hindu, or not a Hindu, he was a Bharatiya. And he was always sequestered or held in the palace where his father and mother lived. वो एक भारतीय परिवार में जन्म लिए थे और एक राज परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन उनको पूरी तरह से राजमहल में ही रखा गया था, इसलिए बाहर की दुनिया नहीं जानते थे. Because when he appeared, or when he was born, the Pandit said, when he becomes an adult, he will leave you and become a monk. जब उनका जन्म हुआ था तो एक ज्योतिषी ने बताया था कि जैसे ही युवावस्था में पहुंचेंगे ये आपको त्याग कर और संसार त्याग कर ये एक भिक्षुक बन जाएंगे. So his mother and father did not want that. So they never took him out of the palace. And in the palace, he never saw anyone suffering or sick. So he had an ideal life sequestered in that palace. तो उनके माता पिता जो राजा रानी थे वो उन्होंने कभी भी अपने बालक को महल से बाहर नहीं जाने दिया और महल में बहुत सारे सुविधाएं और सुख प्रदान किए. इसलिए दुख या पीड़ा कभी भी इस राजकुमार ने देखी नहीं. So as he got older, he could understand that there was an outside world in the palace. When he was a little boy, he didn't know anything. But now he was an adult and he could see there was something outside there. So he asked his parents, I want to go outside and see what's there. बाल्यावस्था में कभी जिज्ञासा हुई नहीं, लेकिन युवावस्था में जब उन्होंने देखा कि महल के बाहर भी, समझ गए कि महल के बाहर भी एक जीवन है, तो उन्होंने अपने माता पिता से पूछा कि हम महल के बाहर क्यों नहीं जा सकते. So his father organized that every old person and any, let's say, people sleeping on the street or poor people, they took them all out of the royal city
so that when he went out, he didn't see any suffering. संसार में जितनी भी दुखद अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि वृद्धावस्था में लोग होते हैं या फिर गरीब अवस्था में लोग होते हैं, तो इन सारे लोगों को उन्होंने उस मार्ग से हटा दिया। राजा ने कहा कि इस मार्ग पर वो नहीं रह सकते जिस मार्ग से राजकुमार को बाहर घूमने भेजा जाएगा। But over time, he was going out maybe once a month. Over time, he accidentally he saw a dead person, he saw old people, he saw poor people, he saw people suffering. लेकिन कालांतर में, मतलब थोड़े ही काल में, राजकुमार ने ये सारे दुखद अवस्थाओं का दर्शन किया, जैसे कि मृत शरीर को देखा, गरीब व्यक्तियों को देखा, बीमार ग्रस्त पीड़ित व्यक्तियों को देखा, वृद्ध व्यक्तियों को देखा। And this disturbed his mind. और फिर उनका मन पूरी तरह से शंकित और विचलित हो गया। And he began to think, how can I live such an ideal life and tolerate the fact that so many people are suffering and having such difficult time in life? और वो विचार करने लगा कि हम इतने आरामदायी जीवन जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं, जबकि संसार में कितने सारे लोग जो हैं वो पीड़ाग्रस्त अवस्था में जी रहे हैं। And he felt, I must do something to stop this unnecessary suffering. और उन्होंने विचार किया कि कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए कि संसार में जो ये दुख है उसका निवारण कैसे किया जाए। So his mother and father, they used a strategy to keep him. They got him married to a very beautiful young woman. तो उनके माता पिता जो हैं वो समझ गए कि इसके मन में ऐसी दुविधा चल रही है, तो उन्होंने विचार किया कि इसका विवाह कर देते हैं तो उसमें उसका मन लग जाएगा वैवाहिक जीवन में। But over time, he was so disturbed by the fact that so many people were suffering that eventually he just left. सुंदर कन्या के साथ विवाह होने के पश्चात भी कुछ समय बाद उनका मन जो है उसी बात में लगा हुआ था कि दुखी लोगों का दुख कैसे दूर किया जाए, और इसलिए वो सब कुछ त्याग करके चले गए। And then for about 5 or 6 years, he engaged in, well, he joined a group of Jain saints, and with them he traveled and he engaged in severe tapasya. The Jains sages, they almost virtually fast all the time, almost to death. तो करीब 5 से 7 वर्ष जो है वो भिक्षुकों के बीच रहे और इन भिक्षुकों के साथ अत्यंत कड़ी तपस्या का जीवन जिया। यहाँ तक कि उनकी तपस्या ऐसी होती थी कि वो इतना उपवास करते थे कि मरणासन अवस्था तक उपवास करते थे। So Mahavir and Buddha, they appeared almost at the same time. तो महावीर जी और बुद्ध जी वो समकालीन अवस्था में ही जन्म लिए थे और कार्य कर रहे थे। After some years with those Jain saints, he realized, I'm not getting anywhere with this. I'm just going to end up killing myself by fasting so much. तो उन भिक्षुकों के साथ रहते रहते वो समझ गए कि इनकी जो तपस्या है इससे खाली यही हो सकता है कि व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इससे ज्यादा साक्षात्कार तो कुछ मिल नहीं रहा है। That's when he left them and he found this tree called the Ashoka tree, and he sat down and began to meditate underneath that tree. तो उस समय उनके संगति त्याग कर वो एक स्थान पहुंचे जहां पर एक विशाल अशोक वृक्ष था और उसके छत्र छाया में बैठकर वो ध्यान करने लगे। And at that time, he had a realization that which are called the four principles of Buddha. और वहां पर उन्हें ये साक्षात्कार हुआ और इस साक्षात्कार को उन्होंने 4 बिंदुओं में उन्होंने प्रस्तुत किया। Point 1. पहला बिंदु जो है, all life is suffering. संपूर्ण जीवन इस संसार में वो पीड़ाग्रस्त है। Point 2. दूसरा बिंदु, one suffers because of a material attachment. यह जो पीड़ा होती है वो भौतिक आसक्ति के कारण होती है। Point 3. give up all material attachments, suffering will go away. तीसरा बिंदु, पूरी तरह से अनासक्त हो जाएं और इस प्रकार से आप दुख से मुक्त हो सकते हो। Point 4. follow Buddha's 8-step process of self-realization, and one will conquer over all suffering. 8 प्रणालियों की प्रक्रिया जो है वो स्वीकारने से जो बुद्ध जी ने दिया है, आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे। Now this is not
the philosophy that we follow ourselves हम जो है इस सिद्धांत का in पालन नहीं Krishna करते। consciousness. हम जिस सिद्धांत का पालन करते हैं वो कृष्ण भावना है। But this is what Buddha was teaching. ये बुद्ध जी ने ये सिद्धांत दिया था। So then, based on that, those 4 points, he also developed a, let's say, 8-fold system of spiritual, let's say, self-realization. तो 8 प्रणालियों की एक प्रक्रिया जो जिससे कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हो, उन्होंने उसे स्थापित किया। And then he began to, so those 8-fold things is such as, you have to have righteous living and righteous thinking and righteous eating and all these different processes for purification. धार्मिक विचार, धार्मिक आहार इत्यादि प्रकार ऐसे 8 प्रकार की प्रणालियां जो हैं उन्होंने प्रस्तुत की। So then he began to go out and preach. और फिर जाकर वो प्रचार प्रसार करने लगे इसका। And people were very, very, at that time there was Sanatan Dharma, right? Everybody was following Vedic tradition. तो सनातन धर्म के अनुगामी उस समय वास करते थे और सब कोई वैदिक धर्म का पालन करता था। But Buddha analyzed why people were suffering. बुद्ध जी ने इस बहुत अच्छे से साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था कि लोग क्यों दुखी होते हैं। Because the Brahmanas were deviating from the truth. तो धर्म जानते हुए भी दुख इसलिए आ रहा था क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो सत्य के मार्ग से हट चुके थे। When Kali Yuga began, certain rules and regulations changed. कलयुग के प्रारंभ होते ही कुछ नियमों का में बदलाव आ गया। Previous to Kali Yuga, the Brahmanas would perform sacrifices in which they would sacrifice cows, and horses, and even human beings. पिछले युगों में कुछ ऐसे यज्ञ किए जाते थे जिसमें प्राणियों की आहुति दी जाती थी और मानव की भी आहुति दी जाती थी, बलि दी जाती थी, जैसे कि गौमेध और अश्वमेध इत्यादि। So they were able to do this because they had the power to kill and to rejuvenate the dead. जो ब्राह्मण अपूर्व काल में ऐसे यज्ञ किया करते थे वो आहुति जीवन की आहुति देते हुए उन्हें एक ऊंचे गंतव्य में पुनर्जन्म दिलवाने की शक्ति रखते थे। So whenever they performed different sacrifices or yagyas, to prove that they said their mantras correctly, they would push a cow into the fire and hold on to the tail, and then say their mantras, and then they pull the cow out. It became a rejuvenated calf that was alive. तो इस यज्ञ में कभी-कभी आहुति में जब गाय को यज्ञ कुंड में डाला जाता था तो उसकी पूंछ पकड़ ली जाती थी और गाय भस्म हो जाती थी यज्ञ में, और मंत्र द्वारा फिर उस गाय को पुनर्जीवित किया जाता था। अब वो एक नवजात बछड़े के रूप में जन्म लेता था। But when Kali Yuga began, those sacrifices were not allowed because the Brahmanas did not have the same purity as they did before to say the mantras correctly. कलयुग के प्रारंभ होते ही ब्राह्मणों में की मानसिक शुद्धता जो है वो कम हो गई, जिसकी वजह से उनकी मंत्र साधना इतनी शक्तिशाली नहीं थी, तो इन यज्ञों को बंद कर दिया गया। But because they would make money by doing those pujas, they continued to do it. लोगों में आस्था थी, लोग इस पूजा के बदले में दक्षिणा दिया करते थे, और क्योंकि ये ब्राह्मण दक्षिणा के लालची हो गए तो फिर भी उन्होंने इस प्रक्रिया को जारी रखा। But in Kali Yuga, when they pushed the cow into the fire and held on to the tail, when they pulled the cow and said some mantras, when they pulled the cow out, it was a barbecue. कलयुग में जब वो इस प्रकार से गौ माता का आहुति देते थे यज्ञ में, तो पूंछ पकड़कर मंत्र बोलते थे, और जब पूंछ खींचते थे तो नवजात गाय बछड़े की जगह पर वहां पर सिर्फ जला हुआ मांस होता था। And they said, "This is Mahaprasad." और फिर वो कहते थे कि ये महाप्रसाद है।
And now, in the name of religion, people were eating meat. और इस प्रकार से धर्म के नाम पर लोग मांस खाने लगे, वो भी गौ मांस खाने And लगे, so-called following Vedic Dharma. और भ्रम में वो सोच रहे थे कि ये वैदिक धर्म का पालन कर रहे हैं। So Buddha saw this and he understood that this is nonsense. बुद्ध जी ने देखा कि ये गलत चल रहा है, And he said, if this is in the Vedas, that you can do this type of yajna, then I reject the Vedas. तो उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हो कि वेदों में ये वर्णित है तो हम वेदों की ये बात नहीं मानेंगे। Now the Vedas were saying in Kali Yuga you don't perform these type of sacrifice, but the Brahmanas were not following it. So, but see, Buddha understood when someone has a material, let's say, purpose. It doesn't matter who they are. They can be a Brahmana or a Vaishya, a Sudra, whatever. It ruins everything. It is a contamination of everything. तो वेदों में तो ऐसा वर्णन किया गया है कि कलयुग में यज्ञ जो है वो बाधित है, यज्ञ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ब्राह्मण जो हैं वो करवाते थे, ये उनकी गलती थी। देखिए, आप चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, जब आप चीज़ों को बदलने लगते हो अपने लालच के लिए, तो सब कुछ समाज में नष्ट करने आप शुरू कर देते हो। So if someone has material desires, then still they're acting as a Brahmana or a saintly person. Every decision they make and everything they do is going to be contaminated. जब भौतिक आसक्ति के कारण, लालच के कारण आप किसी भी प्रणाली को करने का प्रयास करते हो और लोगों को समझाते हो कि उनके लिए योग्य है, वास्तव में आप उनके जीवन को नष्ट कर रहे हो। And actually there's a verse in the 7th canto Srimad Bhagavatam that says, Kaman hit rogam, that if you have this kama, this very strong desires for sense gratification, it affects the heart and it makes you sick. श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक में ये कहा गया है कि अगर आप वासनाओं को अपनी चेतना में रखते हो तो उन वासनाओं की वजह से आपका हृदय पूरी तरह से दूषित हो जाता है और इससे आपको बीमारी भी हो सकती है। Even one desire for sense gratification is enough to contaminate a person so much that every decision they make, every act they perform, every desire they have will be wrong. जब भौतिक इंद्रिय तृप्ति की लालच में व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो हर क्रिया उसकी, हर विचार उसके वो गलत ही साबित होंगे। So the Brahmanas had a desire to continue animal sacrifice because they were making money doing that. तो जो ब्राह्मण थे वो ये सारे यज्ञ जारी इसलिए रख रहे थे क्योंकि उससे बहुत ज्यादा उन्हें धन प्राप्ति हो रही थी दक्षिणा के रूप में। So Buddha said, I reject the Vedas. तो बुद्ध ने कहा कि ये जो आप वेद का रूप प्रदान करो, इस वेद को हम ठुकराते हैं। And he said, the highest principle of religion is ahimsa paramo dharma. और उन्होंने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। So he was preaching ahimsa. वो अहिंसा का प्रचार कर रहे थे। Non-violence. अहिंसा, हिंसा नहीं करना। No violence against any living entity. किसी भी जीव के प्रति हिंसा का व्यवहार नहीं करना। So because he was sincere and he is an incarnation of Krishna, so people followed him. वो भगवान कृष्ण के अवतार हैं और क्योंकि वो बहुत प्रामाणिक विचार प्रस्तुत कर रहे थे, लोग जो है उनके अनुयायी बनने लगे। And for 1,000 years, almost everyone in Bharat became a Buddhist. 1000 वर्षों तक उनके उपरांत 1000 वर्षों तक भारतवर्ष में बहुत सारे लोग बौद्ध बन गए। Especially when King Ashoka became a bhikshu, a Buddhist monk. He gave up being the king and became a Buddhist monk. And this completely, let's say, captured the mind of everyone in Bharat. और खास करके जब सम्राट अशोक राजा बने और वो भिक्षुक बन गए उसके बाद,
तो उनके इस परिवर्तन को देखकर बहुत सारे लोग जो हैं प्रभावित हुए भारतवर्ष में. But even Buddha said that my system will only be valid for 1,000 years. लेकिन बुद्ध जी ने भी कहा था कि ये जो उन्होंने सिद्धांत और प्रणाली दी हुई है सिर्फ 1000 वर्षों तक ही उसका उपयोग होना चाहिए. So 1,000 years later comes Sankaracharya. इसलिए 1000 वर्ष उपरांत शंकराचार्य जी प्रकट हुए. Now he was ordered to come and chase the Buddhists out of Bharat. And how did he do it? उन्हें ये आदेश मिला था कि पूरी तरह से बौद्ध धर्म को परास्त करें, और उन्होंने ये कैसे किया? He also had to reestablish the authority of the Vedas. और बौद्ध विचारों को परास्त करने के पश्चात वैदिक जो भी धारणाएं हैं उसे पुनर्स्थापित करना यह आवश्यक था. So Lord Shiva is very, very smart, and he's received this direct order from Narayana. So he made a philosophy that sounded like Buddhism, but at the same time, he reestablished the authority of the Vedas. क्योंकि वो भगवान शिव के अंश हैं और साथ ही साथ नारायण प्रभु नारायण का आदेश था, तो उन्होंने ऐसा सिद्धांत व्यक्त किया कि जो सुनने में लगता था कि बौद्ध विचार हैं, लेकिन साथ ही साथ वहां पर वैदिक सिद्धांत पुनः स्थापित हो रहे थे. So the Buddhists, they also said that the material world is illusory. तो बौद्ध विचार के अनुसार भौतिक जगत जो है वो भ्रम है, ऐसी मान्यता है. And then you have to reject all material desires. और सारे भौतिक अभिलाषाओं को हमने त्याग देना है. And live a very sattvic life. और एक बहुत ही सात्विक और साधा जीवन जीना है. So also Sankaracharya, he was saying almost the same thing, but he said, but there is, the Vedas teach this in a complete way, but he gave a Buddhist interpretation of the Vedas. शंकराचार्य जी ने कहा कि ये वेदों में ही वर्णित है ये सारे सिद्धांत, लेकिन जब उन्होंने प्रस्तुत किया तो लोगों को लगा कि ये बौद्ध विचार का स्वरूप ही है. So he gave a Buddhist false interpretation of the Vedas so that the Buddhists would accept it, and that way he reestablished the authority of the Vedas by giving it a Buddhist misinterpretation. तो वेदों को पुनः स्थापित करने में जो उनका प्रयास था उसमें बौद्ध लोगों को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया कि ये बौद्ध सिद्धांत ही है, हालांकि वो वैदिक सिद्धांत था एक बौद्ध स्वरूप में. But after doing all that, Sankaracharya said, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Mudamate. He said, give up all this verbal jugglery and just surrender to Govinda and chant his name. क्योंकि अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं था, इसलिए अंत में शंकराचार्य जी ने अपना सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया, जो महाराज ने कहा कि सब कुछ छोड़कर आप सिर्फ भगवान गोविंद का भजन करो. So after writing the whole Sarirak Bhasya, you have to understand how powerful that Shastra is. Before you read Sarirak Bhasya, you're convinced you exist, your family exists, your car exists, the world exists. And after you read it, you're convinced 100% you don't exist, your car doesn't exist, the world doesn't exist, your house doesn't exist. It's all Maya. It doesn't exist. तो जो तथ्य उन्होंने व्यक्त किया था उसे शारीरिक भाष्य कहते हैं, और उसके अनुसार अगर आपने शारीरिक भाष्य नहीं पढ़ा हुआ है तो तब तक आपको विश्वास होता है कि आपका अस्तित्व है, आपकी गाड़ी का अस्तित्व है, आपके परिवार का अस्तित्व है, इस भौतिक जगत का अस्तित्व है. लेकिन फिर आप पूरी तरह से शारीरिक भाष्य पढ़ लेते हो तो आप पूरी तरह से विश्वस्त हो जाते हो कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपकी गाड़ी का कोई अस्तित्व नहीं है, आपके परिवार का कोई अस्तित्व नहीं है, आपके इस विश्व का कोई अस्तित्व नहीं है. Lord Chaitanya said, if you take the trouble to hear Sarirag Bhasya spoken by Mayavadis, you risk never understanding Krishna consciousness. चैतन्य महाप्रभु ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति शारीरिक भाष्य सुनने का हिम्मत करता है
तो फिर जीवन में आप अपने आप को चुनौती यह दे रहे हो कि आप कभी भी सही सिद्धांत नहीं समझ पाओगे. Because in the Sararak Bhashya, which is a commentary on Vedanta Sutra by Vyasadeva, they use exactly the same words that we use, but they give different definitions to them. तो शारीरक भाष्य में व्यासदेव द्वारा कृत जो वेदांत सूत्र है उस पर टिप्पणी टीका की गई है और उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो हम जो वैष्णव है वो शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु उसका अर्थ जो है वो अस्पष्ट और गलत बताया जाता है. So they're using the same words that we use, right? They're basing everything on the Vedanta Sutra of Vyasadeva, but they're giving wrong definitions. And I'll give you one example. तो शब्द का प्रयोग वही है और क्योंकि वो शब्द जो है व्यासदेव कृत वेदांत सूत्र से है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो उल्टा ही देते हैं. For example, illusion. According to the Mayavadis, illusion, the whole material world is an illusion. तो जो मायावाद सिद्धांत है उसमें जब भ्रम शब्द का अर्थ दिया जाता है तो समझाया जाता है कि संपूर्ण विश्व जो है वो एक भ्रम है. And they say, Brahma Satyam Jagat Mithya. और वो इस वाक्य का प्रयोग करते हैं. Only the Brahman is real and the whole Jagat, the whole material creation is Mithya. It's an illusion. तो खाली जो ब्रह्म है वही एकमात्र सत्य है, ये संपूर्ण विश्व जो है, ये संसार जो है, सृष्टि जो है वो मिथ्या है. But Vaishnavas don't say that. वैष्णव सिद्धांत ऐसा नहीं कहता. They say, look, the Jagat is coming from Krishna. Krishna is absolute truth, and anything that comes from him is also the truth. So it's not an illusion. It's real, but it's temporary. वैष्णव सिद्धांत के अनुसार क्योंकि हर चीज जो कृष्ण से व्यक्त होती है वो कृष्ण समान ही है, कृष्ण क्योंकि पूर्ण सत्य है तो ये जगत भी जो है वो सत्य ही है. इसलिए यह समझना जरूरी है कि ये सत्य है किंतु क्षणभंगुर है. But what is illusion is the thought that you can be happy in the material world by sense gratification. That's the illusion. जो भ्रम है वो यह है कि इस क्षणभंगुर सृष्टि में जो कि लुप्त होते रहती है वहां पर आप नित्य रूप से सुखी हो सकते हो. So, and then in Bhagavad Gita, Krishna says that the earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and ego, these are my subordinate spiritual energies. भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो पंच महाभूत है और मन, बुद्धि और जो अहंकार है, ये 8 तत्व उनकी कनिष्ठ प्रकृति है. And besides that, there's my superior spiritual energy. और इसके अलावा उनकी एक वरिष्ठ प्रकृति है जो कि आध्यात्मिक सृष्टि है. So he says, Bhumir apo nalo vayu kam mano buddhire vivacha ahankara itiyam me bina pakritirastata aparayam itastvanyam pakriti vidime prayam jiva bhuta mahabaho daryate jagat. He says that the earth, water, fire, air, these are my inferior or apara prakriti, inferior spiritual energy. Material energy is eternal. But the forms that matter take are not eternal. They're sometimes manifest and sometimes non-manifest. तो इन 2 श्लोकों में भगवद गीता में बताया गया है कि जो कनिष्ठ प्रकृति है भगवान की जो 8 तत्वों से बनी हुई है, ये नित्य तत्व हैं किंतु ये प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं. So, but the superior spiritual energy, apariyamitastvanyam, are the jivas. और जो वरिष्ठ प्रकृति है भगवान की वो जीव आत्मा है. So the jiva is connected to Krishna in the spiritual world because we're part and parcel of the Lord. Maivam sa jiva bhuta jiva loka sanatana. We're the part and parcel of the Lord. So we're not material, but we look material because right now the material body is covering our soul, and we misidentify with the body and not with the soul.
तो इस श्लोक में गीता के ये समझाया गया कि हम आत्मा स्वरूप जो है वो भगवान कृष्ण के नित्य अंश हैं, इसलिए हमेशा से दिव्य हैं, किंतु भौतिक शरीर के आवरण के कारण और उसके साथ हम उस स्वरूप को अपना स्वरूप क्योंकि मान लेते हैं भ्रम में, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि हम भौतिक हैं. So this is very confusing. The Mayavadis are using the same words from the same book that we're preaching from, but they're giving different definitions of it. तो इसलिए बहुत ही भ्रम पड़ जाता है लोगों में जब वो देखते हैं कि वही पुस्तक, वही शब्द, वही श्लोक, मायावादी एक अर्थ निकालते हैं, उल्टा अर्थ निकालते हैं, जबकि वैष्णव जो हैं वो सही अर्थ निकालते हैं और दोनों में विरोधाभास है. It's not just that one word, illusion, that's there's confusion about. It's every word they're saying is going to be different meaning than what the truth is. तो एक शब्द का उदाहरण दिया था कि जैसे भ्रम शब्द का कैसे विरोधाभास अर्थ दोनों निकालते हैं. So they say the whole material world is illusion. They say the jivas, like even each one of you and myself, we're a jiva, right? They say that's an illusion also. They say there's only one jiva or one soul, that's Brahman. लेकिन सिर्फ एक ही शब्द नहीं, बहुत सारे शब्दों का ऐसा विरोधाभास निकालते हैं, जैसे कि वो ये भी कहते हैं कि आप जो जीव हो, आप भी भ्रम हो, हालांकि हम सब नित्य भगवान के अंश हैं. And they say that in order to merge into the Brahman, you have to deny your individuality. और अंततोगत्वा क्योंकि ब्रह्म में आपको लीन होना है, इसलिए आपका अलग से कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता. So their meditation, the Buddhists meditate on nothing, and the Brahmin and the Mayavadis, they meditate on the light. जो बौद्ध हैं वो शून्य पर ध्यान करते हैं और जो मायावादी हैं वो सिर्फ प्रकाश पर ध्यान करते हैं. So one time in Paris, I was doing with the other devotees Harinam Sankirtan every day. एक बार पेरिस शहर में महाराज बाकी भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, प्रतिदिन करते थे. So one day we were doing Harinam Sankirtan, and this big limousine, a very expensive car, stopped near us, and one man came out and stopped me, and he said, my father wants to talk to you. तो एक दिन जब हरिनाम कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी गाड़ी जिसको लिमोजीन कहते हैं वो आकर इनके पास रुकी, हरिनाम टोली के पास, और महाराज जी उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकला और महाराज जी से आकर कहा कि मेरे पिताजी आपसे बात करना चाहते हैं. So, I mean, I saw it was a big car, very expensive. So I said, let me go and talk to him. तो महाराज जी ने देखा कि बड़ी गाड़ी है, प्रचार में इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए उन्होंने विचार किया कि हम जाकर उनसे बात करते हैं. And the man, the father, was sitting in the car, and I spoke to him for about 5-10 minutes. And he said he wanted me to come to his mansion. He had a big mansion outside of Paris, and he wanted to talk to me. तो 5 मिनट के लिए जाकर कार में उनसे संवाद किया उनके पिताजी से, और उनके उस व्यक्ति ने महाराज जी से कहा कि आप कृपया आकर हमसे मिले. उनका एक बहुत आलीशान बड़ा सा बंगला था शहर के बाहर. So I said, okay. I said, when? He said, well, this next week you come. महाराज And he said, I'll send my son with his car, and he'll pick you up, take you to the palace, and then bring you back. कब आपसे मिलने आए? तो उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह आइए और हम ये गाड़ी हमारा पुत्र जो है ये गाड़ी लेकर आएगा आपको हमारे पास ले आने के लिए. So the day came, his son came, it was an early evening, picked me up and drove me to his father's, and it was a palace. It was a very big, beautiful building. और संध्या के समय वो पुत्र आया गाड़ी में, महाराज जी को लेकर उनके बंगले पर गया. वो बंगला नहीं था, आलीशान बंगला नहीं था, वो तो एक राजमहल जैसा था. So I went into the house, and it was like very expensive place. And he sat me down on some kind of a dinner table, but it was a big room, a big table, with all types of expensive things there. And he said, you wait a few minutes, my father will come down and talk to you. तो जब बंगले में गए तो देखा कि बेशुमार धन का वहाँ पर धन युक्त जितने भी पदार्थ वहाँ पर थे. तो महाराज जी जो है ये देख रहे थे, और फिर उनको एक कमरे में ले जाया गया जहाँ पर बैठकर भोजन ग्रहण कर सकते थे, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर बैठिए, हमारे पिताजी आएंगे.
Then the father came down and he began speaking to me, but he was like walking a little bit around me and in front, and he started talking about yoga and self-realization and things like that. तो उनके पिताजी फिर आए और वो उनसे महाराज से बात करने लगे, बात नहीं, वो महाराज को उपदेश करने लगे और महाराज के चारों ओर घूमते घूमते उपदेश कर रहे थे, योगा के बारे में बता रहे थे, आत्म साक्षात्कार के बारे में बता रहे थे. And then he said, I like you very much. You are a spiritual person. He said, I want you to be my disciple. फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे बहुत पसंद हो क्योंकि अध्यात्म में आपकी रुचि है और हम आपको ये अवसर सुअवसर दे रहे हैं कि आप हमारे शिष्य बन जाओ. And when he said that, I was like shocked, I thought he was going to say, well, I want to give you a big donation. I like you're doing Sankirtan. No, he said, I want you to be my disciple. महाराज जी ये विचार करके गए थे कि वहां पर जो ये धनी व्यक्ति है तो उसका धन का प्रयोग हम जो है प्रचार प्रसार में करेंगे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि वो कह रहे हैं कि आप हमारे शिष्य बन जाओ तो बहुत स्तब्ध रह गए महाराज. And he kept walking behind me, coming to one side and going back to the other side like that. And, I was beginning to feel very, very strange. And I thought, I should leave. तो एक भयानक धूर्त ग्रह की तरह महाराज के चारों ओर चक्र घूम रहे थे वो, और महाराज जी को लगा कि ये व्यक्ति जो है कुछ ठीक नहीं है और वो यहाँ से निकलना चाहते थे. And then he was like, and then he's behind me, stayed behind me a little bit, and all of a sudden he grabbed me right here and squeezed as hard as he could right on my so-called third eye. और फिर एक समय ऐसा है कि वो महाराज के ठीक पीछे खड़े थे, महाराज उन्हें देख नहीं पा रहे थे क्योंकि पीछे थे, और उनका हाथ सामने आया और उस प्रकार से महाराज के माथे को पकड़ लिया और ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे कि महाराज की तीसरी आंख को दबा रहे हैं. And he said, do you see the light? Do you see the light? और कहने लगे, तुम्हें रोशनी दिख रही है, तुम्हें प्रकाश दिख रहा है. This is your initiation. You see the light? ये तुम्हारी दीक्षा है, क्या तुम्हें प्रकाश दिख रहा है? Well, he was squeezing me so hard that I did see some light inside there somewhere. जब इतने जोर से आपका सर दबाएगा तो कुछ ना कुछ तो आंखों के सामने चमकेगा ही. So I said, yes, I see the light. I see the light. महाराज ने कहा, हाँ हाँ दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है. So finally he let go. तो फिर उससे छोड़ दिया. He said, now you are my disciple. उसने कहा कि अब शिष्य बन गए, दीक्षा हो गई. I said, yes, Gurudev. महाराज ने हाथ जोड़ के कहा कि बिल्कुल गुरु महाराज. I said, but it's getting late, Gurudev. I have to go back and get ready for tomorrow. He said, okay, my son. But every time I call you, you come. Oh, yes, definitely. देरी हो रही है, हाथ जोड़ के महाराज ने कहा हमें जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है बस जाओ, लेकिन जब भी हम बुलाएंगे यहाँ पर आ जाना. These people are crazy. ये लोग बिल्कुल पागल हैं. They're very crazy. बिल्कुल पागल हैं. But that's what Mayavad philosophy is all about, You can smoke a cigarette, but it's not you that's smoking. It's only your body. तो यही तो पागलपन है मायावाद सिद्धांत का कि आप सिगरेट फूंक रहे हो लेकिन आप कहते हो कि नहीं हम नहीं फूंक रहे हैं, ये तो शरीर फूंक रहा है. And then his initiation, he squeezes you so hard, he says, you see the light, Of course you see something, because he's squeezing too hard. जरा विचार कीजिए कि ऐसा दीक्षा प्रणाली है कि आपके सर को इतने जोर से दबाया जाए कि कुछ ना कुछ तो प्रकाश चमकेगा ही. So this Mayavad philosophy is what you call foolosophy. तो शब्द है फिलॉसफी अर्थात सिद्धांत, और एक शब्द है फूल अर्थात मूर्ख. तो महाराज कहते हैं यह मायावत फिलॉसफी फूलॉसफी है. So they are fooling you with all imaginary ideas. तो फिलॉसफी का मतलब है कि वो आपको फूल बना रहे हैं, मतलब आपको मूर्ख बना रहे हैं काल्पनिक तथ्य देकर. But unfortunately 95, 96, maybe 98% of the gurus in India are Mayavadis. आज के समय में यह हमारा दुर्भाग्य है कि 90 से 95% जो गुरु हैं भारत में वो मायावादी हैं. And they're teaching Atma becomes Paramatma. और वो सिखा रहे हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा बन जाता है. Have you ever heard of this before? क्या आपने ऐसा सुना है? हाथ ऊपर कीजिए. Atma becomes Paramatma. Right? You see, they're teaching it openly and people believe it. और खुलेआम वो ये सिखा रहे हैं और सामान्य जनता जो है इस पर विश्वास भी कर रही है. And they always say Nirakar, Nirakar, Nirakar.
और हमेशा बोलते हैं निराकार, that the absolute truth does not have a body. कि जो परम सत्य है उसका कोई स्वरूप नहीं है. But what does Brahma say? लेकिन क्या ब्रह्मा जी ऐसा बोलते हैं? नहीं. He says in the Brahma Samhita, Ishwara Parama Krishna Satchitananda Vigraha. Vigraha means body, right? But it's not a material body. It's a spiritual body, and it's not made of blood and stool and urine and veins and heart and gallbladder and liver. It's made of Sat Chit Ananda, eternity, bliss, and knowledge. तो ब्रह्मा जी इस श्लोक में समझा रहे हैं कि भगवान कृष्ण का एक सुंदर स्वरूप है, लेकिन ये स्वरूप भौतिक नहीं है, दिव्य स्वरूप है. भौतिक स्वरूप जो है वो मांसपेशियों से, रक्त से, गुर्दों से, हृदय, इन चीजों से बना हुआ है, किंतु जो दिव्य शरीर है वो सत्य, चित और आनंद, इन तीन तत्वों से बना हुआ होता है. So everything that the Mayavadis is saying is wrong. Not one thing is right. But they use the same words and people get fooled by it. तो हर चीज जो मायावादी कहते हैं वो शास्त्र के शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन वो लोगों को मूर्ख बनाते हैं और गलत अर्थ निकालकर समझाने का प्रयास करते हैं. So this Mayavad philosophy has ruined Vedic dharma. और यही मायावाद सिद्धांत जो है उसने वैदिक धर्म को नष्ट कर दिया है. And because of that, it encourages materialism and sense gratification. यही मायावाद सिद्धांत की वजह से लोगों में रुचि निर्माण होती है और इंद्रिय तृप्ति करने के लिए और भौतिकतावादी बनने के लिए, जैसे कि सिगरेट फूकना. But you say, Prabhu, how can you say that? They have sannyasis. Their sannyasis are very strict. लेकिन कोई प्रश्न पूछ सकता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि उनके भी पंथ में बहुत सारे सन्यासी हैं जो बहुत ही तपस्वी हैं. Let's analyze what this very strict means. ये जो बहुत प्रामाणिक हैं वो सन्यासी, इसका अर्थ क्या है, इस पर विश्लेषण करेंगे. Now they say the material world is an illusion. The jivas are illusion. वो कहते हैं कि ये भौतिक संसार, जो सृष्टि जो है वो भ्रम है, जीव भी भ्रम है. They say worshiping deities is an illusion. विग्रहों की उपासना करना यह भी एक भ्रम है. One day I went to the Baha'i temple, which is near our temple in ISKCON temple in wherever it is. Delhi, yeah. तो अभी हाल ही में महाराज जी एक बहाई मंदिर गए थे, बहाई टेम्पल, जो कि हमारे इस्कॉन, दिल्ली में जो इस्कॉन मंदिर है उसके बहुत पास है. You walk in, there's nothing there. आप उस बिल्डिंग में जाते हो जो कि मंदिर कहते हैं, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है. It's a big empty hall. एक शून्य से भरा हुआ एक हॉल है. So I was looking around. I said, "What are they worshiping here?" तो उस खाली से हॉल में महाराज ढूंढ रहे थे कि यहाँ पर किसकी उपासना की जाती है. There's nothing. वहां पर शून्य की उपासना की जाती है, कुछ नहीं है. So one time there was just one devotee. He would come all the time, and then he stopped coming. एक समय की बात है कि एक व्यक्ति जो कि भक्त था वो हमेशा आया करता था, लेकिन फिर वो आना बंद कर दिया. I saw him after 2-3 years. 2-3 वर्ष उपरांत महाराज ने उन्हें देखा. I said, Prabhu, what happened? You're not coming anymore. प्रभु क्या हुआ, अब आप नहीं आते हो? He said, oh, I found a higher truth than your Prabhupada's teaching. प्रभुपाद ने जो शिक्षाएं दी हैं उससे श्रेष्ठ शिक्षाएं हमें अब प्राप्त हो गई. I said, well, what's that higher truth, Prabhu? ये जो श्रेष्ठ सत्य है वो क्या है, बताएं प्रभु. I can dance with the gopis. हम गोपियों के साथ नाच सकते हैं. I said, you can dance with the gopis? आप गोपियों के साथ नाच सकते हो? Is that what they're teaching you? क्या ये बात आपको वहां पर सिखाई जा रही है? He said, yes. उन्होंने कहा हाँ. He said, and I don't need to worship deities anymore. That's for lower class ignorant people. जो अल्पज्ञानी लोग हैं वही विग्रहों की उपासना करते हैं और हमें उसकी आवश्यकता नहीं है. I am doing meditation. हम ध्यान कर रहे हैं. Brahma Kumari meditation. ब्रह्म कुमारी जो ध्यान सिखाते हैं वो कर रहे हैं. I said, look, Prabhu, this is crazy.
This is all nonsense. No, 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 no. This is higher knowledge. देखिए ये आप कर रहे हैं, इससे आपको कोई फायदा नहीं है, पागलपन है। नहीं 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 नहीं, ये ऊंचा सत्य है। So the Brahma Kumaris, they are some of the worst apparatis. All the impersonalists are apparatis, but they're very special apparatis because they really cancel Krishna also. तो ये जो निराकारवादी हैं, ये वास्तव में बहुत अपराध कर रहे हैं कृष्ण के प्रति, किंतु इनमें जो ये ब्रह्म कुमारी सिद्धांत वाले हैं, वो कुछ ज्यादा ही अपराध कर रहे हैं। Although they recommend being celibate, but so do the Mayavadi gurus. They're supposed to be celibate, and they recommend meditation. Okay, but meditation on what? Meditation. Buddhists also do meditation, but they meditate on zero, and the Mayavadis, they meditate on the light. But it's zero also because there's no Krishna involved. तो जो बौद्ध होते हैं वो शून्य पर ध्यान करते हैं, और जो ये मायावादी होते हैं वो प्रकाश पर ध्यान करते हैं, लेकिन प्रकाश पर ध्यान करना भी शून्य के बराबर ही है। So therefore they also cancel Vaikuntha and Goloka. They also cancel Krishna and the gopis and Nanda Maharaj and Yasoda Mai. They cancel all of that. तो ये जो शून्य पर और या प्रकाश पर ध्यान करते हैं, यहाँ पर कृष्ण को नहीं मानते, तो कृष्ण को यहाँ पर ठुकरा दिया गया है। सिर्फ कृष्ण को ही नहीं, वैकुंठ को भी ठुकरा दिया गया है, और वैकुंठ वासियों को भी ठुकरा दिया गया है, और भक्ति की सारी प्रणालियों को ठुकरा दिया गया है। तो सब कुछ उन्होंने काट दिया है, कैंसिल कर दिया। The Buddhists also, they cancel God. They say God doesn't exist. जो बौद्ध हैं वो भी भगवान को उन्होंने कैंसिल कर दिया, ठुकरा दिया, और कहते हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। The Mayavadis also cancel God. They say that when Krishna comes in the material world, he comes with a material body, just like you and me. मायावादी कहते हैं कि जब कृष्ण यहाँ पर अवतार लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो वो एक भौतिक शरीर धारण करते हैं, इस प्रकार से वो भगवान को नकार रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। This has ruined Vedic dharma. वैदिक धर्मों को ये पूरी तरह से नष्ट कर रहा है, ऐसी विचारधारणा। It's a disease. ये एक बीमारी है, It's vicious. और ये रोग जो है बहुत ही खतरनाक है। And basically it supports sense gratification. ये सारी विचारधारणाएं इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा देती हैं। So you see today, one time this one priest came to our temple in Paris, and he was talking to me. One of our devotees, or not one of our devotees, but one of our people that was coming to the temple, he wanted him to do some puja in our temple. So I didn't really like that, but I said, okay. So he came and he did his mantras and so forth, and he had a big book like this. So after the puja, he said, I have a mantra for anything. You have a backache, I got a mantra for it. Your business is not doing good, I got a mantra for it. Your child wants to pass a test to get into college, I have a mantra for it. He had a big book like this. He said, I have a mantra for everything. पेरिस में जब महाराज वहाँ पर सेवा कर रहे थे, तो एक मंदिर में आने वाला शुभ चिंतक जो है, उन्होंने महाराज से आके आग्रह किया कि हम एक मायावादी को लेकर आना चाहते हैं, मंत्र उच्चारण करने वाले को लेकर आना चाहते हैं पूजा करवाने के लिए। तो महाराज ने देखा कि ठीक है, ये सहयोग करता है, तो महाराज ने अनुमति दे दी। वो व्यक्ति आकर मंत्र उपासना करने लगा, उच्चारण करने लगा, और जब समाप्त हो गया तो महाराज से आके कहता है कि मेरे पास किसी भी चीज का मंत्र है। अगर आपको पीठ दुख रही है तो उसका हमारे पास मंत्र है वो ठीक करने के लिए। अगर आपको धन चाहिए या आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसे ठीक करने के लिए हमारे पास एक मंत्र है। So this means that he's not really a brahmana, he's a businessman. इसका मतलब यह है कि वो वास्तव में एक ब्राह्मण वृत्ति नहीं, उनकी एक बिजनेस करने की वृत्ति है। His advertisement is, I have a mantra if you need to if you have a backache. I have a mantra if you want your business to do better. He's advertising it. तो इस प्रकार से वो खाली एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि मेरे पास मंत्र है, अगर आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा है या आपके जीवन में कोई समस्या है तो। So they're actually banyas, they're actually businessmen. तो सिर्फ व्यापारी है वो, ब्राह्मण नहीं है। So then when they do
what it's called. Okay, I'll think of it in a second. The puja where they worship Narayana. Anyway, when they perform these different pujas, they ask you to say in the beginning, Mama. Satyanarayan Puja, yes. They ask you to say Mama. तो ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं वो कभी कभी आपसे पूजा कराते हैं, भगवान नारायण की उपासना करने वाले भी पूजा कराते हैं, जैसे कि सत्यनारायण पूजा, और उसमें मंत्र जब आपको बोलने को कहते हैं तो कहते हैं कि शब्द का प्रयोग करते हैं ममा. Prabhupada said once, why are they saying Satyanarayana? Krishna doesn't tell any lies. प्रभुपाद ने एक बार कहा कि वो क्यों कहते हैं भगवान को सत्यनारायण, भगवान कृष्ण तो हमेशा सत्य बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते. You don't have to say Satyanarayana. He doesn't tell any lies, right? नारायण शब्द का ही अर्थ होता है सत्य, तो सत्यनारायण कहने की जरूरत नहीं है. So anyway, when they now have any of you? I mean, I know Satyanarayana Puja is a very popular thing. Have you experienced that when they in the beginning they ask you to say Mama? आपने अगर कभी सत्यनारायण पूजा की है और right? उन्होंने कहा है ममा, तो हाथ ऊपर कीजिए. Yeah. Okay. Yeah. I mean, I'm not making anything up. It's a fact. What does Mama mean? ममा का अर्थ क्या है? Doesn't mean your mother. ममा ममा नहीं है, मतलब माँ शब्द नहीं है. It means I am doing this puja for me. इसका अर्थ यह होता है कि ये पूजा हम अपने लिए कर रहे हैं. Is that correct? क्या ये सही है? So if you read Bhagavad Gita, and everything is in the Bhagavad Gita, 18th chapter, verse number 5 and 6. So 5 says, Yaha yagya dana tapa karma natyajam karma evatat, and so forth. It says, acts of sacrifice or yagyas, charity and penance are not to be given up. They must be performed. Indeed, sacrifice, charity, and penance purifies even the great souls. तो भगवद गीता के 18 अध्याय में यह बताया गया है 2 श्लोकों में कि यज्ञ, दान और तप और उनके लिए की गई जो भी क्रियाएं हैं उसे कभी भी हमें त्यागना नहीं चाहिए, और वो करना चाहिए क्योंकि इससे शुद्धिकरण होता है. Then the next verse says, all these activities should be performed without attachment or any expectation of result. They should be performed as a matter of duty, O Arjuna. That is my final opinion. और अगले श्लोक में यह बताया गया है कि ये सारे जो भी तप यज्ञ तप दान करने हैं वो बिना किसी आसक्ति के या बिना किसी फल प्राप्ति के वृत्ति से करना चाहिए. So Prabhupada says in the purport, although all sacrifices are purifying, one should not expect any result or material result from such performances. प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि सारे यज्ञ जो हैं वो शुद्धि होते ही हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि फल प्राप्ति की वृत्ति नहीं होनी चाहिए. In other words, all sacrifices which are meant for material advancement in life should be given up. अर्थात जहां पर भी आप कोई भौतिक फल प्राप्ति की अभिलाषा रखते हो वैसे किए हुए यज्ञ नहीं करने चाहिए. But sacrifices that purify one's existence and elevate one to the spiritual plane should not be stopped. जो तपस्या, जो यज्ञ आपको आध्यात्मिक प्रगति करवाती है वो तपस्या कभी भी त्यागनी नहीं चाहिए, उसे करनी चाहिए. So here, this is Krishna speaking, right? He's saying there should not be any expectation of a material result when you perform these yagyas. तो ये भगवान कृष्ण साक्षात बोल रहे हैं कि जब आप यज्ञ करते हो तो कोई भी भौतिक फल प्राप्ति की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए. So next time you invite a pandit to your house to do Satyanarayan Puja, as soon as he says, say Mama. अगली बार अगर आप किसी पंडित को बुलाते हो सत्यनारायण पूजा अपने घर पर कराने के लिए और वो कहता है ये शब्द बोलो ममा, stand up and run as fast as you can out the door. तुरंत खड़े हो जाइए और घर से बाहर भाग जाइए, अपने कान से सुनिए मत वो बात. Even though it's your house. वो आपका ही घर क्यों ना हो, उस घर को छोड़कर भाग जाइए. Because it's nonsense. क्योंकि बहुत खतरनाक है. It has nothing to do with Sanatan Dharma. It has to do with making money. क्योंकि ये प्रक्रिया सिर्फ धन कमाने की प्रक्रिया है, यह सनातन धर्म की प्रक्रिया नहीं है.
So this is the problem, and now I only covered one point. There's about 18 points महाराज जी कह रहे हैं कि अभी तक खाली एक ही मुद्दे पर उन्होंने चर्चा की। आप जानना चाहते हैं कितने मुद्दे हैं? 18 of misconceptions in modern so-called Hinduism. ये सारे 18 मुद्दे हैं कि किस प्रकार से जो वर्तमान हिंदू विचार धारणा है उसमें क्या क्या खोट कमियां हैं। So I'll try and go through this rather quickly. The second misconception in Hinduism is the existence of man gods, false incarnations masquerading as God. दूसरी जो गलत धारणा है वो है कि हम किसी भी मानव को भगवान बनाकर उसकी पूजा करने लगते हैं। Asuram Baba. महाराज जी ने जो नाम लिया वो Nityananda, the present avatar on the earth. ये दूसरे अवतार का नाम लिया गया। The list is huge of all these nonsense people that claim they're God. And Prabhupada said, some people were saying that, Maharaj is dancing with the gopis. And Prabhupada said, before Krishna danced with the gopis, first he lifted Govardhan Parvat. So he said, let them at least lift a table with their first to prove their Bhagavan. He said they can't even lift a table. How are they going to dance with the gopis? इस प्रकार से बहुत लंबा लिस्ट है ऐसे मानव जो भगवान बन चुके हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि एक महाराज हैं और वो गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य करने के पूर्व गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी सी उंगली पर उठाया था। क्या ये लोग एक टेबल अपनी छोटी सी उंगली पर उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं उठा सकते। So these man gods are ruining Vedic Dharma, making a laughing stock. Some of them are criminals, some of them are rapists, some of them are smuggling gold, and they claim they're God. तो इस प्रकार के तथाकथित जो भगवान आजकल समाज में बने पड़े हैं, इनमें से कुछ बहुत व्यभिचार करते हैं, कुछ जो है तस्करी करते हैं, कुछ जो है ऐसे गलत गलत काम किया करते हैं। And the Hindus are accepting them as God. और आज का हिंदू समाज जो है इन लोगों को मान्यता दे रहा है। Therefore, there's a saying in my language: someone who knows nothing will believe anything. इसलिए अंग्रेजी भाषा में कहावत है कि अगर व्यक्ति अज्ञानी है तो किसी भी बात में श्रद्धा रखेगा। If you know nothing, you believe anything. अगर आप कुछ जानते ही नहीं है तो कोई भी आपको कुछ बात समझा दे आप उसको मान लोगे। So this Mayavad philosophy is nothing, actually. Nothing of it is true. तो मायावाद सिद्धांत जो है बिल्कुल असत्य है। And you believe anything then. फिर भी अज्ञानी जो व्यक्ति है उसे सत्य मान बैठता है। So number 3 is the Devata worship, with the misconception that all gods are equal. तीसरी जो गलत धारणा है वो ये है कि सारे देवता जो हैं वो भगवान है, इसलिए किसी भी की पूजा करो, भगवान की पूजा कर रहे हो। This is nonsense. ये गलत है। Devas should be given respect. देवता वो पूजनीय हैं। They are devotees. वो भक्त हैं। They're not necessarily pure devotees, but they're very, very exalted, and they have big responsibilities. उनमें से कुछ शायद पूरी तरह से शुद्ध भक्त ना हो, लेकिन निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भगवान ने दिया हुआ उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं। But if you worship the devas and thinking all gods are equal, then the devas will give you, to a certain extent, some material benefits. लेकिन अगर आप ऐसा मानते हो कि देवता जो जिसकी आप आराधना करो वो साक्षात भगवान है और सारे देवता जो हैं एक समान हैं, तो शायद ऐसी उपासना से आपको कुछ भौतिक फल प्राप्ति हो सकती है। But that's actually a curse. लेकिन ऐसा जो भौतिक फल आपको मिलता है वो श्राप है। To get those benefits, you would have to take birth again. उन फल को प्राप्त करने के लिए शायद आपको पुनर्जन्म लेना पड़े। So it hasn't solved the problem of birth, death, old age, and disease. तो आपकी उपासना से आप जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर तो नहीं निकले हो। It's simply increasing the number of times you're going to be born to get those good benefits.
ऐसे फल प्राप्ति के हेतु जब आप उपासना करते हो तो जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में और धंसते जाते हो. But if you respect the devatas to help you come closer to Krishna, that's bona fide deva worship. लेकिन अगर आप देवताओं से प्रार्थना करते हो कि वो कृष्ण के ओर आपका मन ले जाएं, तो ये वास्तविक में सही देव उपासना है. Just like we're worshiping Prabhupada. जैसे हम प्रभुपाद जी की उपासना करते हैं. Is he Krishna? क्या वो कृष्ण है? No. नहीं. But he's a representative of Krishna consciousness, and he's helping us come closer to Krishna. लेकिन वो कृष्ण भावना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कृष्ण के पास हमें ले जाने का वो प्रयास कर रहे हैं. And the same thing with the devas. If you go to them to help you come closer to Krishna, they'll bless you and they'll help you. उसी प्रकार से जब आप देव पूजा करते हो, उनसे प्रार्थना करते हो कि वो कृष्ण से आपका संबंध जोड़ दें, तो वैसा वो करते हैं. Just like sometimes the gopis would worship Katyayani. जैसे कभी-कभी गोपियां जो है कात्यायनी देवी की आराधना करते हैं. She's an expansion of Durga Mata. दुर्गा माता के ही स्वरूप है. But they asked her, please help us. We want to be with Krishna. गोपियों ने उनसे प्रार्थना की कि हमें कृष्ण का संग चाहिए. So that type of worship is bona fide. यह वर्शिप उचित है. यह उपासना पूजा उचित है. But if you go to the devas for material benefits, it's a curse. लेकिन अगर देवताओं के पास सिर्फ भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए आप जाते हो, तो ये आपके लिए श्राप है. So somebody has to explain the truth. तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जो हमें ये सत्य बात बताए. And the Vaishnava acharyas and Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, they're explaining the truth. और ये जिम्मेदारी वैष्णव आचार्यों ने ली है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर. This is Kali Yuga. ये कलियुग है. In Kali Yuga, people are lying and they're arguing that they're not lying. कलियुग में लोग झूठ बोल रहे हैं और फिर वो झगड़ा करते हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं. You see this a lot in the Lok Sabha. लोकसभा में ये ज्यादा देखने को मिलता है. They're telling lies all the time. वो झूठ बोलने का प्रयास बहुत करते हैं. You took bribes from the Americans so that we buy some of their airplanes. No, I didn't make any bribe, but I didn't get any money. What do you mean? They catch them. They got millions of dollars in Switzerland for convincing the Indian government to buy something from the Americans or from the Russians. See, but they're lying and they say, no, I'm an honest man. I didn't do anything wrong. तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपने रिश्वत लिया हुआ है, आपने बाहर के देशों से रिश्वत लिया हुआ है, बहुत ज्यादा धन रिश्वत लिया हुआ है, आपका काला पैसा जो है बाहर अन्य एक देश में है, और फिर वो एक दूसरे से झगड़ा करते रहते कि मैंने नहीं लिया, तुमने लिया, तुमने नहीं लिया, मैंने लिया. So next point is performance of Vedic ritualistic ceremonies for material benefits. अगला जो गलत धारणा है कि एक गलत रीत यह है कि वैदिक यज्ञ जो है उसे सिर्फ कर्मकांड के रूप में भौतिक अभिलाषा पूर्ति के लिए करना. Like let's say someone opens a new business. So then they call the Pandit to come to do a puja so the business will be profitable. Is that right? It happens all the time. तो महाराज जी पूछ रहे हैं कि कभी-कभी व्यक्ति कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई धंधा शुरू करता है, एक पंडित को बुलाता है कि वो पूजा करे ताकि उसका धंधा आगे बढ़े. ये सही बात है? सही बात है तो हाथ ऊपर कीजिए. Just like in your Maharashtra, there was a very, very bad earthquake, I think, about 12, 15 years ago. And then on the news, they interviewed a man who had a shop, and the shop was destroyed by the earthquake. And they said, what do you think about this? He said, I think that our gods are no good. I was worshiping Ganapati every day. Well, he wasn't worshiping. He was paying some man to come, some pundit to come. And he has a little space in his business where he opens the door and there's Ganapati and he's doing ha-hu, he-ha, wa-ha-hu. And and he gives him some money and he goes away and he'll come back again the next day to do it again. You see. So now he's saying because the earthquake came and his business got ruined, he doesn't believe in Ganapati anymore. महाराष्ट्र में बहुत वर्ष पूर्व एक भूकंप आया था
एक प्रांत में, और वहाँ पर बहुत लोगों को नुकसान हुआ। तो एक व्यापारी, उसका दुकान था, उस दुकान पर उसने एक छोटा सा पूजा घर बनाया था जिसमें कि गणपति जी थे, और रोज एक पंडित आकर वहाँ पर पूजा करता था, अगरबत्ती लगाता था, कुछ मंत्र बोलता था जैसे महाराज ने कहा वैसे, और चला जाता था। लेकिन भूकंप में उसका पूरा दुकान जो है ध्वस्त हो गया। तो इस व्यक्ति ने ऐलान कर दिया टीवी पर, नेशनल टीवी पर, कि हमारे भगवान बिल्कुल कमजोर हैं, बिल्कुल बेकाम हैं। So let's make a comparison here. For a devotee, whether they're successful in life, let's say materially, or whether they lose everything in life, they still continue in devotional service. They don't give up the devotional service. But the materialists, they do pujas every week or every month of Satyanarayana puja and so forth, so that they'll be getting richer and richer. But if something goes wrong, they stop. And they say, no, I'm not going to do this anymore. I'm going to become Microsoft, I'm going to study Microsoft, what do you call it? Microsoft qualified, and get a job in Microsoft and make a lot of money. I'm not going to do any more pujas. तो ये Microsoft certified, yeah. तो ये समझने की आवश्यकता है, थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है कि जब एक भक्त के जीवन में यश है या अपयश है, उसके भगवान के प्रति श्रद्धा तनिक भी कमी नहीं होती है, श्रद्धा हमेशा बढ़ती रहती है। किंतु जब एक भौतिकतावादी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आती है, जैसे कि अगर वो एक पुजारी है, पूजा कर रहा है और उसके जीवन में उसको नुकसान पहुंचता है, तो उसके मन में विचार आता है कि ये उपासना का कोई फायदा नहीं है, हम ये उपासना छोड़ देते हैं और पैसा कमाने के लिए नया जरिया ढूंढते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जाकर वहाँ पर उनके जो भी योग्यताएं हैं उसे प्राप्त करना सर्टिफिकेट के रूप में, और वहाँ पर नौकरी पर लग जाना। There's one temple in okay, I'll think of it in a second. There's one temple in um, Hyderabad, yeah. It's called Visa Balaji, right? So people go there and they do 108 circles around Balaji, and then they get a little card, and then if they get a visa, they have to come back again and do more puja there, right? Is that what Balaji is about? हैदराबाद में एक मंदिर है जहाँ पर बालाजी की उपासना की जाती है, और वो बहुत प्रख्यात हो चुके हैं, उनका नाम पड़ गया है वीज़ा बालाजी, क्योंकि वहाँ पर लोग जाते हैं, बालाजी की प्रदक्षिणा करते हैं 108 बार, पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनको अमेरिका की वीज़ा मिल जाए। जब वीज़ा मिल जाती है तो वापस लौट कर आते हैं और फिर से परिक्रमा करते हैं और फिर से पूजा करवाते हैं। क्या यही सही उपासना है बालाजी की? You see, the whole thing is becoming a joke, right? It's all about making money. It has nothing to do with spirituality. तो ये सब कुछ देखिए एक मजाक बन गया है, ये अध्यात्म के बारे में है ही नहीं। So anyway, like I said, there's a long list, but you get the idea. I won't go through the whole thing. You get the idea that there's this adulteration, there's this contamination of pure Sanatan Dharma by all these material desires that people have, and the Brahmanas are making money, so it's impossible to convince them to stop it, because their whole livelihood is based on the money that they're getting for these pujas. तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अभी तक हम 4 ही मुद्दे जो हैं उस पर चर्चा किए हैं, 18 है लेकिन अभी पूरा करेंगे नहीं, कि किस प्रकार से ऐसी गलत धारणाओं की वजह से जो वास्तविक वैदिक संस्कृति है, वैदिक धारणाएं हैं, वो भ्रष्ट होते जा रही हैं और गलत विचार जो है लोगों के मन में बसता जा रहा है। और इसको रोकने का कुछ तरीका भी ठीक से दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो ब्राह्मण ये सब कर रहे हैं उनके मन में लालच है, वो धन कमाना चाहते हैं और इसलिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। In World War II, one Bengali industrialist became rich supplying raw materials to the Nazis in Europe. तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था पिछले सेंचुरी में, तो उसमें एक बंगाल का व्यापारी जो है उसने बहुत धन कमाया, क्योंकि बहुत सामग्री वो भेज रहा था जर्मनी की जो नाजी जो लोग थे उनके पास। Because he made so much money, he put the picture of Hitler on his altar.
और जो हिटलर का पिक्चर है, फोटो है, उन्होंने उसे अपने पूजा घर में लगा दिया क्योंकि इतना धनी हो चुका था And he was worshiping like he's God. और उन्हें भगवान मानकर उसकी उपासना कर रहा था. This is how crazy people have become. देखिए लोग इसी प्रकार से पागल हो जाते हैं. And even in Hindu temples, especially in the United States, if someone comes to the temple and says, I want you to put deity of Sai Baba, I'll give you $10,000. They do it right away. They say, yes. They put a picture on the altar. Now you have Radha Krishna, and you have Shivaji, you have Durga Mata, you have Surya, and now you have Sai Baba. Then somebody else comes in, I'll give you $20,000. You put my grandmother on the, and they'll do it. They'll put a picture of a grandmother and say, oh, she's a great saint. You know, this is all based on money now. It doesn't have anything to do with Sanatana Dharma. तो आजकल देखा जा रहा है कि लोगों की वृत्ति जो है थोड़ी बदलते जा रही है और अमेरिका में भी जब लोग कोई मंदिर बनाते हैं तो एक धनी व्यक्ति आकर कहता है कि हम आपको 10 लाख रुपया देंगे, आप यहाँ पर किसी बाबा साईं बाबा का जो है मूर्ति रख दीजिए. तो राधा कृष्ण के विग्रह हैं, शिव जी का विग्रह है, सूर्य देव का विग्रह है, दुर्गा माता का विग्रह है और साथ में किसी बाबा का भी विग्रह है. फिर अन्य कोई धनी व्यक्ति आता है, वो कहता है कि हम आपको 20 लाख रुपया देंगे, आप यहाँ पर मेरी दादी माँ का मूर्ति लगा दीजिए. तो दादी माँ की भी मूर्ति वहाँ पर आ जाती है. So there's no end to this, and it's all contaminating the purity of understanding who God is and how to become a devotee. They're becoming devotees of these nonsense people, just like Sai Baba. He was a Muslim, but he was like a sadhu, right? Now the Muslims didn't accept him as like a god. The Hindus did. and even up to today now they make temples, this temple, that temple for this Sai Baba and then the other Sai Baba. How many Babas are there? There's going to be 1 million Babas pretty soon, see? And they're going to make temples for all the Babas. That's just diluting the purity of the spiritual Krishna consciousness. तो जो शुद्ध कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भावना है या वैदिक जो संस्कृति और धारणाएं हैं, वो इन गलत धारणाओं की वजह से भ्रष्ट होते जा रहा है. जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो है जन्म लेता है किसी मुस्लिम परिवार में, बाद में साधु बन जाता है, तो उसको मुस्लिम जाति जो है उसे मानती नहीं है, लेकिन जो हिंदू हैं फिर उन्हें बाबा मानने लगते हैं. फिर उनका नाम लेकर कोई और एक बाबा आ जाता है, वैसा ही नाम लेकर कोई तीसरा बाबा आ जाता है. तो देखा जाए तो इस प्रकार से कोटि कोटि बाबाएं जो है ऐसे प्रकट होते रहेंगे. So Sai Baba, he was living in a abandoned mosque that was half broken, but he was a sadhu, like he lived like a sadhu. So eventually they decided to rebuild the mosque, but make it a temple for Govinda. तो साईं बाबा जो है वो एक वीरान मस्जिद में रहा करते थे, टूटा फूटा मस्जिद था, लेकिन वो साधु थे. तो हिंदू लोगों ने आकर जो है उनकी आराधना, उनकी मदद करनी शुरू की, उनकी उपासना करनी शुरू की और उसी मस्जिद को उन्होंने एक मंदिर का स्वरूप दे दिया और वहाँ पर भगवान गोविंद की आराधना भी शुरू कर दी. But unfortunately he died before the temple was finished. लेकिन मंदिर पूरी तरह से बनने के पूर्व ही उनका निधन हो गया. And then his followers, who were all Hindus, instead of putting the deity of Govinda, they made the deity of Sai, and they said he's God. और उनके जो भी अनुयायी थे, जो हिंदू थे, उन्होंने देखा कि अब इनका निधन हो गया है, तो भगवान गोविंद का विग्रह नहीं स्थापित किया, उसके जगह पर साधु का जो है विग्रह बनाकर स्थापित कर दिया और उन्हें भगवान के रूप में पूजने लगे. So you see, all these deviations are taking place because this is Kali Yuga. Now, what are we going to do about this? तो कलयुग में हम देखते हैं कि इस प्रकार से सारी धारणाएं बदल रही हैं, गलत हो रही हैं. अब हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? We have to be so trained and so pakka in our Krishna consciousness that people will see that we have the genuine understanding of how to worship Krishna and to spread this Sankirtan movement.
and massive prasadam distribution and massive distribution of bona fide literatures like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, eventually people will understand. Because if you're happy, if you're honest, if you're clean, if you have pure love for Krishna, that will conquer all this nonsense. तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम सब जो हैं बहुत ध्यानपूर्वक अपने आप को प्रशिक्षित करें और अपने सिद्धांतों को समझें, कृष्ण भावना को बहुत ही प्रामाणिकता से समझकर उसका पालन करें और साधारण जन समुदाय में जाकर इसका प्रचार करें, पुस्तक वितरण द्वारा, प्रसाद वितरण द्वारा, बहुत सारे उत्सव करते हुए। और जब लोग देखेंगे कि आप इतने सुखी हो और लोग देखेंगे कि आप कितने निष्ठावान हो, आप कितने प्रामाणिक हो, आप कितने दयावान हो, और तो वो भी जो हैं वैसा बनना चाहेंगे और वो भी जो है सनातन धर्म का के अनुयायी हो जाएंगे। After all, people are not convinced by philosophy. They're convinced by honest, humble behavior of genuine devotees. That's what convinces them. जो प्रामाणिक भक्त होते हैं, जिनके गुण होते हैं कि वो बहुत सत्यवादी हैं, बहुत निष्ठावान हैं, बिल्कुल विनम्र स्वभाव होता है, ऐसे व्यक्तित्व को देखकर लोग जो हैं प्रेरित होते हैं, ना कि सिर्फ सिद्धांत सुनकर या ज्ञान प्राप्त करके। So when people come to this temple and they see a large group of people cooperating, behaving very nicely, they're very clean, they're honest, and they're giving, and they help people. You greet people like they're members of your family, and they say, "Oh, I don't understand anything about their philosophy, but I see they're good people, and I'm going to come back again. In fact, I feel happy. I have some shanti here, and I like this dancing, and I like this singing, and I like this prasadam, and I like the behavior of the people." See? तो जब कोई हमारे मंदिर में आएगा और आप सबका दर्शन करेगा और देखेगा कि आप सब जो हैं कितने प्रेम से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कितने अच्छे से आप सेवा कर रहे हैं, किसी भी अनावश्यक चर्चा में आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी का भी आप जो है गलतियां नहीं दिखा रहे हैं या झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई यहाँ पर लोग इतने अच्छे हैं, इतने प्रामाणिक हैं, इतने विनम्रता है उनमें और आपस में कितने मिलजुल कर रह रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर कितनी शांति है, ये कितना अच्छा स्थान है और यहाँ पर अच्छा प्रसाद मिलता है, लोग कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं। तो सिद्धांत भले ही उन्हें ना समझ में आए, लेकिन उन्हें लगता है कि ये अच्छे लोग हैं और ऐसे अच्छे लोगों के साथ हमें रहना है। So when people come here, they're going to watch you very carefully. They're going to see how you're taking care of your children. Are they running around wild, or are they sitting down next to their parents and listening to the class? And are they happy? Are the women happy? The men look like they're happy, but sometimes women don't look like they're happy, right? Or maybe the opposite. The women look like they're happy and the men don't look like they're happy. So they're going to be watching you very carefully. You know, you're going to be a meditation for them, because they're trying to see what's wrong with you so they can walk out and not come back. But if they can't find anything wrong and actually like you and respect you for your goodness and your sincerity, they're going to come back over and over again. तो जब लोग यहाँ पर आएंगे तो बहुत ध्यान से आपको देखेंगे, आप उनके लिए ध्यान मूर्ति बन जाते हो। अगर वो देखेंगे कि आपके बच्चे जो हैं यहाँ वहाँ कूदते हुए कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं, या आपके बच्चे जो हैं अनावश्यक शरारत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आपके साथ बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं, वो आपके साथ बैठकर सेवा कर रहे हैं या प्रवचन सुन रहे हैं, तो ये उन्हें अच्छा लगता है। जब वो देखेंगे कि पति पत्नी जितने भी स्त्रियां हैं पुरुष हैं वो सुखी हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है। क्योंकि कभी कभी स्त्रियां सुखी होती हैं तो पुरुष नहीं होते, और पुरुष सुखी होते हैं तो स्त्रियां नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वो देखते हैं कि दोनों ही वर्ग के लोग जो हैं बहुत ही सुखी हैं, सेवा कर रहे हैं, विनम्र हैं, एक दूसरे की स्तुति करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो वो बहुत ध्यान से बारीकी से ये देखना चाहते हैं कि आप कुछ गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही उन्हें लगेगा कि आप कोई गलती कर रहे हो तो ये स्थान को छोड़कर जाने का उन्हें एक कारण मिल जाता है। लेकिन जब आप पूरी तरह से उनके मन को आकर्षित कर लेते हो आपके प्रेम में विनम्र स्वभाव से, तो बार बार यहाँ पर आने का प्रयास करेंगे
और उन्हें लगे कि ये परिवार का सदस्य उन्हें बनना चाहिए। The strongest force in the world is love. इस It's जगत not में money, it's not guns and bombs, it's pure love. इस जगत में ऐसा लगता है कि धन में ही शक्ति है या अस्त्र शस्त्र जो बंदूक हैं उसमें शक्ति है, लेकिन ये गलत धारणा है, क्योंकि संसार की सबसे शक्तिशाली एकमात्र शक्तिशाली जो वस्तु है वो है प्रेम। And you cannot fake love. और प्रेम का ऐसा स्वभाव है कि आप उसमें ढोंग नहीं कर सकते। People can tell very quickly whether it's love or it's lust. They can tell. लोग बहुत आसानी से ये पता कर सकते हैं कि आप उनसे प्रेम करते हो या ढोंग कर रहे हो या अपनी वासना को व्यक्त कर रहे हो। And people can tell also whether you're for real or you're some phony that's pretending to be a good devotee. They can tell. They're not stupid. लोग जो हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, वो मूर्ख नहीं है, वो तुरंत पहचान जाते हैं कि आप सही व्यक्ति हो, आप सत्यवादी व्यक्ति हो या आप एक ढोंगी हो। So the best preaching is when you have the genuine qualities of a pure devotee. तो सबसे अच्छा प्रचार तभी होता है जब आप अपने आप में उन गुणों को वास करवा देते हो जो कि एक शुद्ध भक्त का गुण होता है। So there's two ways of preaching. One is with words. The other, which is more meaningful, is with actions. दो प्रकार से आप प्रचार कर सकते हो। एक है कि आप अपने वचन से प्रचार करते हो, अपने शब्दों द्वारा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्रभावी, बहुत गुना प्रभावी जो प्रचार करने का तरीका है वो है आपका व्यवहार, आपका चरित्र। This is called sadachar. इसे सदाचार कहते हैं। When you are sadachar, people will see it right away. जब आपका आचरण सत्य पर आधारित हो तो लोग तुरंत उसे देखकर पहचान जाते हैं। Because you're kind, you're humble, you're clean, you're dedicated to God, and you are helping people and respecting them. You don't say, oh, this is a poor person, I'll ignore him. I'll just go and preach to the rich people. No. क्योंकि वो देखते हैं कि आप दयालु हो, आप निष्ठावान हो, आप सत्यवचनी हो, आप स्वच्छता का पालन करते हो, भगवान के प्रति पूरी तरह से आप समर्पित हो और किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करते हो, सबको समान दृष्टि से सम्मान देते हो। वो देखते हैं कि आप गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उतना ही सम्मान देते हो जितना कि कोई बहुत धनी व्यक्ति हो, और सिर्फ धनी व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ रहे हो। So one time Shivaji and Parvati were traveling and they came to this one small village and there was a beggar there. एक बार शिव पार्वती एक गांव पहुंचे जहां पर एक भिखारी था। So Parvati saw the beggar and she said to Shivaji, said, do something to help him, give him something so he can be able to eat properly, or do something. तो पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि थोड़ा सा आप कुछ तो कीजिए जिससे कि इसकी मदद हो जाए ताकि वो कुछ खा सके या अच्छे से रह सके। So he was begging. He said, please help me. I don't have enough to eat. Please give me some money. तो वो इस प्रकार से रुदन कर रहा था, रो रहा था कि मुझे मेरी मदद कृपया करके कोई कर दो, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ वस्तु नहीं है। So Shiva, because he has mystical powers, he produced a watermelon. तो शंकर जी ने, शिव जी ने जो है एक तरबूज प्रकट किया। And he put very valuable jewels inside the watermelon. लेकिन उस तरबूज के अंदर भीतर, अक्खा तरबूज था, पूरा तरबूज था, उसके भीतर उन्होंने कुछ कीमती रत्न रख दिए। So he came to the beggar, and beggar said, please help me. So he said, here, I give you watermelon. तो स्वरूप बदलकर उसके सामने जाकर उन्होंने तरबूज दिया उस भिखारी को। And the beggar looked at the watermelon and said, I don't want a watermelon. हमें तरबूज नहीं चाहिए, ऐसे I want some money. मुझे कुछ पैसा दो। He said, no, this is very good watermelon for you. It's very tasty. He said, I don't want this. Give me some money. Don't you understand? I need some money. ये बहुत नहीं चाहिए मुझे ये तरबूज, नहीं बहुत स्वादिष्ट है, आपके लिए अच्छा है, बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको समझ में बात नहीं आ रही है, मुझे कुछ पैसा चाहिए। So Shiva said, well, you please take this. And he left it and walked away.
तो शिव जी ने कहा कि नहीं, आप ये रखिए, और रखकर वहां पर शिव जी चले गए. So the next person that came by, the beggar said, "Take this watermelon away from me." तो अगला व्यक्ति वहां से जो राहगीर जा रहा था, भिखारी ने उसे देखा और कहा कि ये तरबूज ले जाओ. So Shiva and Parvati was watching this, and Shiva turned to Parvati. He said, "See, I gave him enough to live like a king for the rest of his life, but he refused to take it because his heart is impure. Therefore, he could not recognize that this was a blessing." तो शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि देखो, हमने उसे एक अवसर दिया था कि वो बहुत ही आराम का जीवन जी सके, धनी बन जाएगा, लेकिन क्योंकि उसका हृदय प्रदूषित है, इसलिए वो उस अवसर का लाभ नहीं ले पाया. And the man that took the watermelon, when he took it home and opened it to eat it, he found the jewels and he realized this is a great blessing. तो जो राहगीर वो तरबूज लेकर चला गया, वो घर में जाकर उसे काटा खाने के लिए, भीतर उसको रत्न मिले, तो वो समझ गया कि ये आशीर्वाद है. So every one of you has received the watermelon. आप सब व्यक्तियों को एक तरबूज मिला हुआ है. It's called Bhagavad Gita, उसे भगवत गीता कहते हैं, Srimad Bhagavatam, श्रीमद् भागवतम, Harinam Sankirtan, हरिनाम संकीर्तन, Prasadam, प्रसाद, Sadhu Sangha, सत्संग, साधु संग, deities. विग्रह. You are the richest people in the world, आप इस संसार के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हो. rich in blessings. आपका धन है आशीर्वाद, Asirvad, the real Asirvad. और ये वास्तविक आशीर्वाद है. Now, all you have to do is share that with other people. अब खाली आपने ये करना है कि इस आशीर्वाद को दूसरों के साथ Because बांटना है. nirmama nirahankara, nothing belongs to me, and I have no false desires. I simply want to please Prabhupada and Krishna. You will have hundreds and thousands of people coming to this temple if that you have a community of people acting like that. किसी भी वस्तु का अधिकारी मैं नहीं हूं, क्योंकि वो मेरा नहीं है, और ना ही मुझ में किसी प्रकार का अहम है, अहंकार है कि कोई मेरे लिए काम करे. जब आपकी वृत्ति ऐसे हो जाती है तो आप देखेंगे कि इस मंदिर में हजारों की संख्या में लोग आएंगे. When people come here, they should be shocked. They'd say, "My God, they treated me like I'm a member of their family, जब with यहाँ पर respect and giving me so many things. I got this thing and that thing. I'm taking it home. They gave some present to my child. Like usually when new people come to our temple, we give them a bag, and it has Prabhupada literature in it. It has prasad. It has pictures of Krishna, and there's a whole bunch of things, and we don't know who they are, but as soon as they come, we give them the bag, and they look at it, they're surprised because they're expecting, to see like a sign of the puja $21, car puja $21, then boga $150 or 150 rupees, and this thing, the whole list of things with dollar signs. No, we don't have that in the temple. As soon as they come, we give them something, right, without them asking for it, and they're a little bit surprised because usually people are asking for money, right? तो जब भी कोई यहाँ पर अतिथि स्वरूप में कोई भी आता है हमारे मंदिर में, तो उसे बिल्कुल स्तब्ध रह जाना चाहिए, क्योंकि उसका अनुभव ऐसा हो कि उसे लगे कि एक बहुत बड़े प्रेमपूर्ण परिवार का सदस्य की तरह बहुत ही सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार किया गया. और जो भी यहाँ पर आता है उससे हम कभी कुछ मांगते नहीं हैं, क्योंकि बाकी जगह पर लोगों को आदत पड़ गई कि कहीं ना कहीं लिखा होता है कि इस पूजा के लिए इतना पैसा दीजिए, इस पूजा के लिए इतना पैसा दीजिए, घर पूजा के लिए, गृह पूजा के लिए, कार पूजा के लिए पैसा दीजिए. हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं है. महाराज अपने मंदिर में ऐसा कुछ नहीं, सियाटल में जो मंदिर है वहाँ पर ऐसा कहीं पर भी इश्तिहार नहीं लगाया गया है, बल्कि कोई भी नया व्यक्ति आता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उस नए व्यक्ति को एक बैग दिया जाता है जिसके अंदर भगवान के विग्रह के फोटो होते हैं, प्रसाद होता है, श्री प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ होता है, और ये भेंट उनको दिया जाता है. So when they come to this temple, every day is Diwali.
तो जब भी वो इस मंदिर में आए उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो एक उत्सव में आए हैं, दिवाली एक उत्सव में आए हैं, That's the way they should feel. वैसे उन्हें लगना चाहिए. Right. So anyway, I'll stop there. Thank you very much. Hare Krishna. Are there any questions? किसी के मन में कोई प्रश्न है? माइक माइक. हरे कृष्णा प्रभु जी. Hare Krishna. मैं हिंदी में पूछता हूँ. तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है, जब भी मतलब मैं खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, जब हम चैंटिंग करते हैं तो उसमें हैप्पीनेस की फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि ये फीलिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए. लेकिन वो फीलिंग बढ़ाने के लिए कभी कभी मैं ज़्यादा चैंटिंग करता हूँ. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मतलब ये खुद के लिए, खुद के आनंद के लिए कर रहा हूँ या कृष्ण के आनंद के लिए. तो ये फीलिंग, ये फील करना अच्छी बात है या अच्छा नहीं है फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस? I have been chanting for some time. Whenever I chant, I feel very nice. So because of that feeling, I feel like chanting more. So I chant more, and I feel much more better. Now I have this doubt in my mind that is this the right approach? Should I be chanting for my own pleasure, or should I be chanting for Krishna's pleasure? And how do I go about it? Okay, that's a good question. बहुत अच्छा प्रश्न है. The Mayavadis, they try and stop emotions जो मायावादी सिद्धांत है उसमें आप अपनी भावनाओं को रोकने का प्रयास करते हो, because they have to deny all these things in order to merge into Brahman. क्योंकि इन सारे चीजों को उन्हें ठुकराने की आवश्यकता पड़ती है. But Vaishnavas never deny emotions. लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो कभी अपने भावनाओं को ठुकराते नहीं हैं. In fact, they cultivate emotions लेकिन वो अपने भावनाओं को एक सही मार्ग देते हैं. for Krishna. Haribol. इस मार्ग पर वो भावनाएं कृष्ण तक पहुंचती हैं. So they get so emotional that when they chant Hare Krishna, tears flow from their eyes. तो जो वैष्णव होते हैं जब वो हरे कृष्ण का जप करते हैं इतने भावुक हो जाते हैं क्योंकि आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है. But they're not tears of sorrow. लेकिन वो दुख के आंसू नहीं है, They're tears of happiness. सुख के अश्रु हैं. I feel so happy that I met these devotees and they taught me to chant the holy names. And I feel more and more the presence of Krishna. And I'm actually experiencing that Krishna is helping me in my daily life. वो ऐसे विचार करता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे भक्तों का संग मिला जिनके साथ मिलकर मैंने हरे कृष्ण जप करना सीखा. जप करते हुए मुझे इतना कुछ लाभ मिल रहा है. कृष्ण जो है मुझ पर कितनी कृपा कर रहे हैं जिससे कि मेरा जीवन सुधर रहा है. So your question is, I'm chanting, I feel happy. Is that some selfish thing that I'm going to increase over time? What is it? Tell me. Is it right or is it wrong? Is that the question? He says yes. महाराज जी ने पूछा कि आपका प्रश्न ये है कि क्योंकि हम जप कर रहे हैं और हमें आनंद हो रहा है तो क्या ये मेरा स्वार्थ है और ऐसा स्वार्थ क्या उचित है या इसका कुछ और अर्थ निकलता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल यही प्रश्न है. But the Vedic Shastra says that the natural state of a person is anandamaya vyasat. वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि जीव का वास्तविक अस्तित्व है आनंदमय अभ्यासात. Now, if you read Chaitanya Charitamrita, first canto, fourth chapter, you'll see that when the gopis see Krishna, they feel tremendous happiness. And Krishna notices it, that they are seeing something in me that I don't see myself. So the only way Krishna can experience what the gopis are experiencing is if he takes the position of the gopis. Now, how did he do that? He became Chaitanya Mahaprabhu, in which he is acting like the gopis as a servant of Krishna. And now
he's experiencing what the gopis are experiencing when they see Krishna. Because Krishna realized they're having more happiness than I am by something in me that it's exciting them so much. So this is all emotions. It's not artificial. It's genuine emotions. The Mayavadis, they reject all emotions because it'll stop them from becoming nirakar. Nirakar means nothing, right? But we don't reject emotions when they're genuine. So you're getting genuine emotions, feeling of great gratitude that you can chant the name of Krishna, that someone gave this to you now. It's a great blessing. And it gives you happiness because that's who you are. Anandamaya Pyasat. That's the nature of the jiva, is to be happy. चैतन्य चरितामृत के आदि खंड में चौथे अध्याय में एक प्रसंग समझाया गया है कि एक बार कृष्ण ने देखा कि जो गोपियां उनकी सेवा कर रही हैं तो वो बहुत आनंद में है, और कृष्ण ने सोचा कि इनका जो आनंद है ये कहीं मेरे आनंद से श्रेष्ठ है, तो ये आनंद की अनुभूति कैसे की जाए। तो उस समय कृष्ण ने निर्णय लिया कि मैं गोपियों के भाव में अवतरित होऊंगा, और वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और उस आनंद की अनुभूति की। अर्थात कृष्ण भावना में जब हम सेवा करते हैं या साधना करते हैं तो हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक योग्य पद्धति है, और जब वो योग्य पद्धति के रूप से हमारी भावनाएं व्यक्त होती हैं तो हमारे लिए बहुत ही अनुरूप है, अनुकूल है। मायावादी जो है वो भावनाओं को इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य है निराकार होना, इसलिए जो भावनाएं हैं वो इस उद्देश्य में उनको रोकती हैं, तो भावनाओं को ठुकराते हैं। लेकिन कृष्ण भावना में हम हमेशा बहुत ही अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, कृतज्ञ समझते हैं कि हमें ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ जहाँ पर हमें नाम जप करने का हमें ज्ञान दिया गया, और नाम जप करते हुए भगवान की कृपा से हम इन भावनाओं की अनुभूति कर रहे हैं। तो हम इस प्रकार से कृतज्ञ होते हैं कि हमारी अनुभूति नहीं है, भगवान की कृपा है, और इसलिए भावनाओं को हम स्वीकारते हैं। So if you want to, if you're feeling this happiness, then you should give this happiness to others also. अगर आपको इस आनंद की अनुभूति हो रही है तो आपको यह विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार से दूसरे लोगों ने आपको मदद की इसकी अनुभूति होने के लिए, आप दूसरों की मदद करें, उन्हें बताकर कि वो भी कृष्ण भावना में आए ताकि उन्हें भी आनंद की अनुभूति हो। Now you see, when the materialists want to be happy, they have ganja, they have liquor, they have meat, they have sex, and they're dancing like monkeys, right? And they're telling bad jokes with mean words, and that's what they call happy. Like one time when I was a young kid, my family took me to a New Year's Eve party, and when I went there was a large group of people, and everyone was dressed really nicely, right? And they were talking nicely. So they ate dinner, which was a lot of meat, and they were drinking wine and whiskey. And then all of a sudden the men started loosening their ties, and opening up their shirt a little bit. And the women let their hair come down. And then they started dancing. And then one person, because he ate so much meat, he started throwing up, like that. And then some people got into a fight. And I was just 10 years old, I was watching all this. By the end of the night, they took 3-4 people to the hospital. And some people fainted, other people were fighting, and it was like chaos, right? And this was celebration. तो भौतिकतावादी व्यक्ति जो है आनंद कहाँ ढूंढता है? वो या तो नशा में ढूंढता है, या तो वो जो है व्यभिचार में ढूंढता है, या तो वो मांस खाने में ढूंढता है, या तो दारू पीने में ढूंढता है। तो इस प्रकार से वो प्रयास करता है कि उसे आनंद मिले। कभी कभी पार्टी में जाकर बंदरों की तरह नाचने का प्रयास करता है।
जैसे कि उदाहरण के लिए जब महाराज छोटे थे तो उनके माता पिता उन्हें एक नूतन वर्ष के उपलक्ष्य में जो पार्टी की जाती है, न्यू ईयर्स ईव पार्टी, तो उसमें लेकर गए थे। तो वहाँ पर उन्हें देखा कि पहले लोग मांस खा रहे थे या वैसे पदार्थ खा रहे थे, फिर धीरे धीरे वो वाइन और विस्की नाम के दारू के अलग अलग ब्रांड पीने लगे, और फिर जो है कपड़े जो है ढीले करने लगे कि थोड़ा सा कपड़े फॉर्मल कपड़े पहन के गए थे ना, तो उसे ढीला करके फिर उसके बाद नाचने लगे। नाचते हुए और भी शराब पी रहे थे, फिर उसकी वजह से कुछ लोगों को उल्टी होने लगी तो उल्टी करने लगे। फिर कुछ लोग जो हैं एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। 4-5 लोगों को कुछ समय बाद अस्पताल पहुंचाया गया। और इस प्रकार से महाराज ये सब देखकर विचार कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो पार्टी होने वाली थी, ये तो कुछ और ही हो रहा है। So the karmi's happiness is actually more suffering, right? But your happiness is real. You're just chanting Hare Krishna and you're feeling happiness because Krishna is coming closer to you. You're beginning to experience it, and it gets better and better. I'll tell you how good it gets. You have Sanjaya, he's sitting in Delhi, and he's telling Dhritarashtra what's happening in Kurukshetra, which is like, I don't know, 300 miles away. He is seeing this. There was no internet 5,000 years ago, right? There was no television. There was no radio. There was the Krishna net, see? And it's in your heart. Just like it says that Brahmaji was instructed through his heart, right? So Krishna is in your heart as Paramatma. He's the source of all knowledge. So if you become Krishna conscious, you'll be able to connect to this Krishna net through your heart. And you'll be able to see in real time Krishna's pastimes in the spiritual world. Don't think that this is some exaggeration. We have the proof of it. Many people have attained that state of pure consciousness, and it's internal. It's not an external thing. You don't need technology for this. It's a higher technology. It's called pure love and devotion. That's a much higher technology. तो जो भौतिकवादी लोग हैं वो सुखी होने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें दुख ही मिलता है। सही सुख जो है वो सिर्फ जो प्रामाणिक भक्त होते हैं उनको ही अनुभूति होती है, क्योंकि जब वो भगवान का नाम जप करते हैं तो उन्हें यह अनुभव होता है कि कृष्ण के और निकट पहुंच गए हैं। और वास्तव में जब आप कृष्ण के इतने निकट पहुंचने लगते हो तो आपको उसकी जो सुखद अनुभूति है वो प्राप्त होती है। इसको आप कोई अतिशोक्ति ना समझे, क्योंकि उदाहरण भी दिया गया है संजय का। संजय जो है महाभारत के समय काल के जो संजय हैं वो दिल्ली हस्तिनापुर दिल्ली में बैठे हुए थे और कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था, जो कि कम से कम 400-500 किलोमीटर दूर होगा। फिर भी उन्हें सब कुछ दिव्य दृष्टि द्वारा प्राप्त था, क्योंकि कृष्ण जो उनके हृदय में थे वो उन्हें ये दर्शन करवा रहे थे। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान साक्षात आपके हृदय में उपस्थित हैं और आपको दर्शन देते हैं। और ये इस बात को भी अतिशयोक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस स्तर को प्राप्त किया है जहाँ पर अपने अंदरूनी चेतना में वो भगवान के साथ जुड़ चुके हैं, जो भगवान उनके हृदय में है। बाह्य दृष्टिकोण से समझ में नहीं आता है, लेकिन अंतःकरण में वो जुड़ चुके हैं और इसलिए उनके ये जो दिव्य भावनाएं हैं वो व्यक्त होती हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप जो है जप कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, ये शुरुआत है। So don't think this is going to happen overnight, but you're beginning to feel those emotions. Those are natural, let's say, a natural process of gradual spiritual realization. You're not going to be on the level of Sanjaya overnight, right? Just like Vasudeva and Devaki, they meditated together for 12,000 years before Krishna manifested as their son. So Krishna consciousness is a gradual process. But right from the beginning, you get hints of how wonderful it is, right? So you just continue your devotional service. You don't want to be, don't try and become some mahant, right?
or some miracle man. The more you become humble, the more spiritual advancement you're going to make. That's what you should focus on. तो जो परमोच्च स्तर है वो आपको रातों रात नहीं प्राप्त होगी। आप रातों रात जो है संजय जैसे नहीं बन जाओगे या ऐसे महात्माओं की तरह आप नहीं बन पाओगे, लेकिन जो आप अनुभव कर रहे हो एक शुरुआत है, ये आपके लिए एक ट्रेलर है। यहाँ से धीरे धीरे टप्पे टप्पे पर आपको और अनुभूतियाँ आएंगी और इस प्रकार से आप अगर प्रामाणिक रहे तो उस स्तर तक पहुंच जाओगे। उदाहरण के लिए जैसे वासुदेव और देवकी जी, उनकी इच्छा थी कि भगवान कृष्ण संतान रूप में प्राप्त हों, उसके लिए पूर्व जन्म में उन्होंने 12,000 वर्षों तक तपस्या की थी, ध्यान किया था। और उसका कोई प्रश्न है? I'm sorry this is going on so long. Dandavad Pranam Guru Maharaj. A person in terms of financial, he is very limited. He's what? A person in terms of financial condition, he is very limited in helping others. Yes. What should be the behavior of that person in towards the deprived sections of the society? Whether he should help them financially up to his capable extent, or what should be done in terms of spiritually, which way is more beneficial to them? Thank you. प्रश्न ये है कि धन के दृष्टिकोण से कभी कभी हमारी कुछ कमियां, कुछ ना कुछ बाधाएं होती हैं। हम सीमित रूप से खाली किसी की मदद कर सकते हैं। जब हम किसी को देखते हैं कि कोई बहुत ज़रूरतमंद व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, तो किस प्रकार से उसकी मदद करनी चाहिए? क्या हम धन देकर उसकी मदद करें या कुछ ऐसी चीज़ खरीद कर धन से उसे दें कि उसकी मदद हो, या फिर हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम उसे कुछ मदद करें जिससे कि उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो? तो किस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं, ये प्रश्न था। दोनों ही दृष्टिकोण में कौन सा योग्य है, उचित है या सर्वोत्तम है? Let me ask you a question first. You have a grandmother? No. You don't have a grandmother? Yes. Yes. I had. Yeah. Yes. Was she rich? Sorry? Was she rich? Rich, अमीर थी क्या? No, she was not rich. Did you like her? Yes, certainly. Why did you like her? Because she imparts lots of love to me, towards me. Now you know the answer to your question. Yes. Okay? Yes, Guru Maharaj. महाराज जी ने प्रश्न पूछा कि क्या आपकी कोई दादी या नानी माँ है, तो उन्होंने कहा जी हाँ है, अभी नहीं, उनका देहांत हो गया, लेकिन है हमारी दादी और नानी या नानी। तो महाराज ने पूछा कि क्या आप उनसे प्रेम करते हो? तो उन्होंने कहा बहुत प्रेम करते हो। महाराज ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करती थी। तो महाराज ने कहा देखो आपको उत्तर मिल गया। That love is worth more than all the money in the world. वो जो प्रेम धन है, वो संसार के संपूर्ण धन से कहीं श्रेष्ठ है। So if you have love for Krishna, which is the most important love, right? He obviously has love for you because he spoke Bhagavad Gita, and he's maintaining you. You don't know how you digest. You don't know why you're breathing at night when you're sleeping. All this is controlled by Krishna. See? So if you give someone genuine love, that's more than money. कृष्ण जो है, आप कृष्ण से प्रेम करते हो, ये बात आप जानते हो। कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं, इसमें कोई भी जो है विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण आपके पालनहार हैं। अगर कृष्ण आपसे इतना प्रेम करते हैं और आप कृष्ण से प्रेम करते हो, तो ये बात समझने की जरूरत है कि प्रेम ही सब कुछ है। अगर आप किसी को प्रेम दोगे तो धन से कहीं ज्यादा वो उसका असर होगा। One day I was walking down the street in America, and I saw a very old man walking toward me.
एक दिन अमेरिका में हम एक रास्ते पर चल रहे थे और सामने से एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति हमारी तरफ आ रहा था. So I said hello to him. I stopped him and I said, what is your name? तो हमने उन्हें संबोधन किया, राम राम किया उनको और कहा कि आपका नाम क्या है? So he looked at me. He said, who are you? उन्होंने हमें देखा, पूछा तुम कौन हो? I said, I'm just, a person, but I like to meet older people. मैं ऐसे ही साधारण व्यक्ति हूँ, महाराज जी ने कहा, लेकिन वृद्ध लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगता है. He said, why? उन्होंने पूछा क्यों? I said, because you have more experience of life than I do. क्योंकि आपके पास जीवन की अनुभूति बहुत ज्यादा है हमसे. He said, I like you. उन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ. He said, what do you want to know? क्या जानना चाहते हो आप बताओ. I said, just tell me anything that you think will help me. जो भी आपको लगता है कि मेरी मदद हो सके आप कृपया मुझे बताएं. So he said, you know how to climb a mountain? क्या आपको पता है कि पर्वत पर कैसे चढ़ा जाता है? I said, no, I never climbed a mountain. तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, हमें नहीं पता है कि कैसे पर्वत पर चढ़ा जाता है. So he told me, the secret is, when you're climbing a mountain, never look down. उन्होंने कहा, Always look up at the goal. उन्होंने कहा कि जो बहुत ही मुद्दे वाली बात है वो है कि अगर आप पर्वत चढ़ रहे हो तो कभी भी नीचे मत देखना, वो आपके लिए खतरनाक है. हमेशा जो चोटी है उसकी तरफ देखना, तो आगे बढ़ते रहोगे. I told him, thank you very much. I needed to hear that. महाराज ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत आवश्यकता थी इसको सुनने की. I said, what you just said is very profound. आपने जो बात कही वो बहुत ही गूढ़ है. So the rest of my life, I always look at the goal. I don't look down. I always look up. तब से जीवन भर में हमने यही एक सिद्धांत अपने रखा हुआ है कि हमेशा मैं चोटी की तरफ या अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देता हूँ, पीछे नहीं देखता हूँ या खाई की तरफ नहीं देखता हूँ. So Prabhupada gave us the goal. प्रभुपाद जी ने हमें लक्ष्य दिया है. Krishna consciousness is two things. One, to know Krishna. Two, to love Krishna. कृष्ण भावना खाली दो शब्दों में या दो वाक्यों में समझ में आ सकता है. पहले कृष्ण से प्रेम करना, दूसरा Love Krishna. और पहला कृष्ण को जानना और दूसरा कृष्ण से प्रेम करना. So that's the highest goal. और यही एकमात्र जो है लक्ष्य है या सबसे ऊंचा लक्ष्य है. That's the top of the mountain. और वो पर्वत की चोटी है. So I don't look back anymore. I just keep my eye on the goal and try to reach it. इसलिए जीवन में पिछले अनुभूतियों की ओर कभी भी मैं नहीं देखता, मैं हमेशा आगे लक्ष्य की ओर देखता हूँ जीवन में. That's what we should all do. और हमें वही करना चाहिए. इन दो जो चीज हैं उस पर ध्यान देना चाहिए. That's the answer. और ये उत्तर है. Haribol. Any other questions? Okay. First, Thank you, Maharaj, for a wonderful lecture. So my question, as I moved recently to India, As I recently moved to India after a long time, and as you said about Mayavadis and different kinds of people, so as we go through the life, day to day, we meet so many people with different faiths. Some are in the family itself who are worshipping different people, different faith. When you go to the work, and so how practically I should deal with them? That's first part of the question. Second part is sometimes this, as a practicing devotees, for false pride comes into me. Hey, my philosophy or my whatever I am practicing is greater than others, so I am puffed up. So if you can give more practical hints on how do I deal with both the situations. Right. तो प्रश्न ये है कि भारत में अभी रहते हुए ये अनुभूति आ रही है कि जो ये अलग अलग धारणाएं और सिद्धांत भारत में प्रचलित है, तो व्यवहार में ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है. और ऐसे लोग कभी कभी हमारे परिवार में भी होते हैं या जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर होते हैं, अन्य स्थानों पर भी होते हैं.
तो ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? दो मुद्दों पर। पहला मुद्दा यह है कि अपने परिवार में जो लोग हैं उनके साथ हमें कैसे, किन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। और दूसरा मुद्दा यह है कि कभी कभी उन्हें देखकर हमें लगता है कि हम कितने श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमारे पास सर्वोच्च ज्ञान है, और उसकी वजह से इसके कारण से हमारे मन में अहंकार आ सकता है। तो क्या आप हमें कुछ व्यवहारिक ऐसी बातें समझाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल हिंट देंगे जिससे कि इन दो मुद्दों पर हम काम कर सकें? So when I was the president of the temple in Berkeley, California, the neighborhood people hated us. Now, I wasn't there when that hatred developed. I came after that hatred was there. एक समय पर महाराज जी कैलिफोर्निया राज्य जो अमेरिका में है उसके बर्कली शहर के हमारे इस्कॉन मंदिर के प्रेसिडेंट रहे, और हमारे मंदिर के जो जितने भी पड़ोसी थे वो बहुत ही हमसे द्वेष और ईर्ष्या किया करते थे, हमें बिल्कुल नहीं चाहते थे। महाराज जी के वहाँ आने के पूर्व से इस प्रकार की उनकी भावना हमारे लिए थी। And that temple was going to close. और उसके कारण मंदिर में बहुत समस्या हो रही थी और मंदिर बंद होने के स्थिति में था। I came to try and save it. महाराज को वहां पर भेजा गया था ताकि उस मंदिर को जो है बचा सके और उसे चालू रख सके। The leader of the haters was directly across the street from the temple. और जो उन पड़ोसियों में से सबसे ज्यादा हमसे द्वेष करता था, हमारे खिलाफ था, वो बिल्कुल मंदिर के जो मंदिर जिस रास्ते पे था उसके उस पार सामने ही रहता था। And he was like a PhD. He had some big position in the government, and he hated us. And he organized everybody in the neighborhood to hate us. तो हमारा मंदिर जो है बहुत अच्छे स्थान पर है, वहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग रहते हैं। तो ये जो व्यक्ति था वो PhD किया हुआ था, बहुत बड़े अच्छे काम पर एक पोजीशन में था गवर्नमेंट में, और वो हमसे नफरत करता था। The situation was very bad. And I was always thinking, praying to Krishna, what are we going to do here? These people have all the power. We don't have the power. And eventually they'll make us leave. तो महाराज जी समझ गए थे कि परिस्थिति बड़ी गंभीर है, बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है साधारण थे, हमारे पास कोई ना तो गवर्नमेंट की शक्ति थी, लेकिन ये व्यक्ति जो है गवर्नमेंट में था, धनी व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था, और पड़ोसियों के साथ मिलकर इनके पास गवर्नमेंट की भी शक्ति थी, पड़ोसियों की भी शक्ति थी। तो भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, क्या करना चाहिए ऐसे स्थिति में। So one day I was chanting my rounds about 6 o'clock in the morning after Mangal Arati outside the temple. And I was walking up and down chanting. And this man's truck, he had a truck, was parked on our side of the street. तो एक दिन की बात है, प्रातः काल मंगल आरती के बाद जब करने का समय जब था, तो महाराज जी मंदिर के बाहर जो आंगन है वहाँ पर चलते हुए जब कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो पड़ोसी नफरत करता था, उसकी एक गाड़ी, उसका एक जो ट्रक है वो मंदिर के दीवार से लगकर खड़ा था, मतलब हमारी तरफ वो खड़ा था, हमारे पार्किंग में। And I kept walking past the truck and coming this way and that way. And then one time I walked around the truck, right, chanting my rounds, and I noticed that there was a gas leak from his truck, and it wasn't pouring, but it, drip, 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 drip. But there's a big, like, puddle of gas underneath his truck. तो महाराज जो है ऊपर नीचे ऐसे जप करते हुए चल रहे थे, तो ट्रक के सामने से या पीछे से ऐसे ऊपर नीचे निकल रहे थे। एक समय ट्रक के चारों ओर घूमते हुए जप करते हुए उन्होंने देखा कि जहाँ पर टंकी होती है ट्रक की, जिसमें कि पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसमें से वो चू रहा था, और चू कर काफी जो डीजल पेट्रोल है वो नीचे इकट्ठा हो चुका था। So I thought, oh, this is dangerous. If there's some fire, the whole truck will go up in flames. तो महाराज तुरंत समझ explode also, right? महाराज तुरंत समझ गए कि ये बहुत खतरा है यहाँ पर, कि किसी भी प्रकार से वहां पर आग लग गई तो सब कुछ जल सकता है, और इतना ही नहीं, बहुत बड़ा भयंकर विस्फोट भी हो सकता है। Now this is 6 o'clock in the morning, right? So I thought, let me go and tell him.
तो 6 बजे के सुबह का समय था, तो महाराज ने सोचा कि जाकर उन्हें चेतावनी दे दी जाए। This is the man that hates us. और ये वो व्यक्ति है जो बहुत हमसे नफरत करता है। So I went to his door. Everything was covered with, you couldn't see inside, right? And I knocked on his door. तो उनका घर ऐसा था कि बाहर से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, तो महाराज उनके दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। And there was no answer, so I kept knocking over and over again. तो अंदर से किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि किसी को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन महाराज फिर भी जोर जोर से खटखटाते रहे। Finally, he came to the door and opened his curtain on the window of the door. And as soon as he saw me, he started screaming at me, why are you knocking on my door? Get away from me. So he was speaking through the window, right? But I could hear him. It was like he was shouting. दरवाजा अभी भी बंद है, लेकिन शायद खटखटाने से अंदर आवाज चली गई। तो वही व्यक्ति जो है वो आया दरवाजे तक, लेकिन दरवाजे के बगल में जो खिड़की है वहां से झांक कर देखा कि कौन है। और जब उन्होंने महाराज को देखा तो बहुत गुस्से में आकर, खिड़की बंद है, दरवाजे बंद है, लेकिन इतना गुस्सा आया था उसे कि जब वो जोर से डांटने लगा तो डांट बाहर तक आ गई कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। He used some curse words also, and he said, I'm going to call the police. उन्होंने कुछ अश्लील शब्दों का भी प्रयोग किया और कहा कि मैं पुलिस को बुलाने वाला हूं। But then I spoke really loudly. I said, your truck, do you understand? Your truck, there's a big problem. तो महाराज भी जोर से बोलने लगे क्योंकि सब कुछ बंद है। तो महाराज भी ऊंचे स्वर में कहे कि आपका जो ट्रक है, आपकी जो गाड़ी है, उसमें बहुत बड़ी समस्या है। So then he opened the door. He said, what do you mean my truck? You're trying to do something to my truck? तो दरवाजा तुरंत खोलकर उसने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा, मेरा ट्रक तुमको कुछ तो उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो। I told him, calm down, will you? You have a gas leak. He said, what? I said, you have a gas leak in your truck. So he immediately walked to his truck, and I walked behind him, and he saw there was a big puddle of gasoline underneath the truck. He had a leak. तो महाराज ने कहा कि शांत हो जाओ, मैं खाली बताना चाहता हूं कि आपके ट्रक की जो टंकी है उसमें से ईंधन गिर रहा है। तो उन्होंने कहा क्या? उसे पूरा विश्वास नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो अपने ट्रक की तरफ गया। महाराज भी पीछे पीछे दबे पांव उसके पीछे पहुंचे। जब उसने देखा कि सही बात है, So then he said, thank you very much. I said, don't worry. I said, I already brought, when I saw the gas there, I actually brought some cloths, from the temple. I put it on top of it, or at least some of it, And he said, did you do that? I said, yes. He said, thank you very much. His whole tone changed, from cursing and saying nasty things. He thanked me and he said, you're actually a good neighbor. तो वो व्यक्ति वहां पर पहुंचा और उसने देखा कि सही में वहां पर जो है ईंधन गिर चुका है, नीचे से टंकी में से चू चुका है। लेकिन उसे और एक दृश्य दिखा कि जहां पर ईंधन गिरा हुआ है वहां पर बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो कि उसे सोख रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये तुमने किया? तो महाराज जी ने क्या किया था कि उसके दरवाजे तक जाने के पहले वो कुछ कपड़े ले आए थे जिसमें कि वो ईंधन, वो पेट्रोल सोख सके ताकि कोई खतरा ज्यादा बढ़े नहीं। तो ये बात उसे समझ में आ गई। उसका पूरा जो व्यवहार है बदल गया उस व्यक्ति का। वो महाराज की ओर मुड़ा और उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे गलतफहमी हुई थी, लेकिन वास्तव में तुम बहुत अच्छे पड़ोसी हो। So 1 or 2 months later, he came to the temple and knocked on the door. And when we opened the door, I saw him. And I was a little surprised. I thought he was going to come and complain about something. And he said, can I come in? I said, sure, please come in. तो 1-2 महीने बाद एक बार ऐसा हुआ कि मंदिर का दरवाजा बंद था, तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो महाराज ने स्वयं दरवाजा खोला तो यही व्यक्ति था। महाराज थोड़ा सा चिंतित हो गए कि कहीं और कुछ कंप्लेंट करने तो नहीं आया, लेकिन उस व्यक्ति ने बड़े शांत स्वर में पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? And he said to me, I'm the leader of all the people, and we really want you to be thrown out of this neighborhood. उन्होंने कहा कि देखो, तुम तो जानते ही हो कि जितने भी पड़ोसी हैं वो सब तुम्हारे खिलाफ हैं और उन सब का नेता मैं हूं, और हम सही में चाहते हैं कि तुम्हारा मंदिर बंद हो और तुम लोग को यहां से हम खदेड़ दें। He said, but what you did for me by showing me
the truck was leaking, and you put some cloth there, and you woke me up in the morning to warn me. He said, that really impressed me. लेकिन मैंने विचार किया कि जो तुमने किया कि सबसे पहले तुमने देखा कि वहां पर ये लीक हो रहा है पेट्रोल, फिर तुमने वहां पर आकर कपड़ा रखा, उसके बाद हिम्मत करके तुमने हमारे दरवाजे पर खटखटाया और शांत स्वर में, स्वभाव में तुमने हमें बात बताई, हमारी समस्या क्या है। इन सारी चीज़ों से मैं बहुत आपसे बहुत ही प्रभावित हो चुका हूँ। So 1 month from now, it's going to be my 50th anniversary birthday. He said, I came to talk to you. आज से I want to celebrate my birthday in your temple. आज से 1 महीने बाद मेरे हमारी 50वीं वर्षगांठ है, जन्मदिन का वर्षगांठ है, और मेरी ये इच्छा है कि ये वर्षगांठ जो है 50वीं आपके मंदिर में आकर हम इसका उत्सव मनाएं। So I was shocked when he said that. So I said, sure. I said, are you going to invite anybody? He said, yeah, I'm going to invite the whole neighborhood. तो महाराज ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी आपकी सेवा में यहाँ पर तत्पर हैं। तो महाराज ने फिर पूछा कि क्या बाकी और किसी किन्हीं लोगों को आप बुलाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, जितने भी पड़ोसी यहाँ पर है सबको बुलाएंगे। I said, how many people do you think are going to come? महाराज ने पूछा कितने लोग आएंगे, आपको क्या लगता है? He said, maybe 40 people. शायद 40 हो सकते हैं। I said, do you want us to cater them? You want us to provide food? He said, you'll do that? I said, yeah, and it's free. He said, what are you going to give us? I said, I'm going to give you anything you want. You tell me what you want, we'll make it. He said, okay. So I'll give you the menu. And he said, now I'm going to advertise this. You sure you're going to be able to do this? I said, yeah, no problem. तो फिर महाराज ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आपके इस उत्सव में हम जो है व्यंजन भी आपको दें, कुछ खाने के लिए भी रखें? तो उन्होंने पूछा कि क्या आप ऐसा कर सकते हो, हमारे लिए करोगे, क्या बना सकते हो? महाराज ने कहा बिल्कुल बना देंगे। तो और ये सब कुछ आपको मुफ्त मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आप क्या बनाओगे? महाराज ने कहा जो आप चाहते हो, जैसी आपकी इच्छा है हम वो बनाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको बाद में बता देंगे कि क्या क्या बनाना है। So the day came and all the people came. We had set up a big table with nice tablecloth, nice plates and spoons and flowers, and it was a grand feast. तो वो दिन आ गया, सारी तैयारी कर दी गई थी मंदिर के तरफ से, बहुत बड़ा टेबल रखा गया था, उसे अच्छे से सजाया गया था, बहुत सारे जो जो व्यंजन उन्होंने बोले थे वो बनाए गए थे, अर्थात जो हम बना सकते हैं हमारे नियम के अनुसार वो व्यंजन जो है बनाकर हमने उन्हें प्रदान किया था, और वो सारे अतिथि आए। We made a big birthday cake. बहुत बड़ा हमने बर्थडे केक बनाया with a lot of candles on it. और बहुत सारे उसमें मोमबत्तियां, कैंडल्स लगाई। And we all chanted, Happy birthday to you. और इस प्रकार से उनके लिए गीत गाया। And then he wanted to make a toast. So we had also purchased what you call apple juice, but it looks like it's a wine bottle, right? And we had those type of glasses that you drink wine in, right? So he made a toast, with the grape juice, and everybody, stood up and he spoke. और वहाँ की प्रथा ऐसी है कि जो यजमान होता है वो सबको आवाहन करता है, और आवाहन करने के तरीकों को कहते हैं टोस्ट करना, और इसके लिए वो एक ग्लास में थोड़ा सा पेय पदार्थ, वहाँ पर वो शराब पीते हैं, लेकिन हमें मंदिर में जो है महाराज ने सेब का जो एप्पल जूस, सेब का रस, वो उसका एक बॉटल रखा हुआ था, तो उसने वही एक ग्लास में भरा। ग्लास भी वैसे ही था जैसे कि लोग टोस्ट में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो लेकर उसने टोस्ट किया। So he spoke first, right? And he said, he's holding the wine glass with grape juice. He said,
that we don't like you guys. और आह्वान करते हुए कुछ शब्द कहे जाते हैं। तो उसने जब आह्वान किया, टोस्ट किया वो जूस हाथ में रखकर, तो सबसे पहला वाक्य था कि आप लोग तो जानते हो ना कि हम आप लोगों से कितना नफरत करते हैं। And I organized all these people to get you thrown out of this neighborhood. और हम सब मिलकर, और विशेष करके मैंने इन सबको इकट्ठा किया था कि आपको यहाँ से कैसे भगाया जाए, खदेड़ा जाए। And we were going to get you out of here. और हमने पूरा प्रयोजन कर दिया था कि आप लोग यहाँ से निकल ही जाते। But he said, that morning when you came and told me about the leak in gas in my truck, I couldn't believe it. लेकिन जिस सुबह आप मेरे पास आए और आपने बताया कि मेरे गाड़ी की टंकी जो है वो चू रही है, तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। I was really impressed. और मैं बहुत प्रभावित हुआ कि आपने ऐसा किया, मेरे हित में ऐसा किया। And I have to admit this, it changed my opinion of you. और क्योंकि मैंने देखा कि आप मेरे हितैषी हो, तो मेरा आपके प्रति जो विचार था वो पूरी तरह से बदल गया। And you see, I invited all these people to my birthday party in your temple. और आप देखते हो कि मैं आपको कितना बड़ा शुभचिंतक मानता हूं कि मैंने इन सब को आपके मंदिर में मेरे वर्षगांठ के दिवस पर बुलाया है। If someone had told me to do this a year ago, I'd say, you're crazy. I'll never go to their temple. अगर एक वर्ष पूर्व ऐसा कोई मुझे कहता तो मैं कहता कि तुम पागल हो। ऐसा इतना ही नहीं, ये विचार भी मेरे मन में नहीं आता कि आपके मंदिर में कोई ऐसा उत्सव मनाए। But I'm doing this in your temple to tell my people that you're actually good people. लेकिन मैं इसीलिए उत्सव कर रहा हूँ, और मैंने सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि मैं ऐलान करना चाहता हूँ जोर से कि आप लोग दुनिया के सबसे अच्छे लोग हो। So then they all started, clicking the glasses together. तो जब एक मत हो जाते हैं ऐसे अवस्था में, तो उन लोग क्या करते हैं, चम्मच लेकर ग्लास को we had टंकन करते also रहते हैं, glasses. Yeah, so everybody's clicking. और एक दूसरे से ग्लास ऐसे टकराते हैं। तो जो भक्त थे उनके पास भी था, क्योंकि ग्लास था, अंगूर का जूस था, तो वो भी कह रहे थे हाँ शाबाश शाबाश। And we all drank the apple juice. और सबने फिर वो सेब का जूस, एप्पल जूस पी लिया। So then, 1 year later, he had a stroke. इसके एक वर्ष बाद उन्हें जो है एक स्ट्रोक हो गया, मतलब हृदय रोग, He almost died. और मृत्यु हो गई। And he was- तब वो मरने वाला था। He was paralyzed on one side. He couldn't. अच्छा, उसे सर का हुआ था स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो उसका आधा हिस्सा जो है वो पैरालाइज हो चुका था। And he didn't have a wife, and he didn't have any children, and I guess he didn't have any family members near him. So he was basically alone in the house with his stroke. वो वहाँ पर अकेला रहता था, उसका कोई परिवारजन नहीं था वहाँ पर। Paralysis. Yeah. तो उसका आधा शरीर जो है काम नहीं कर रहा था, और इस अवस्था में वहाँ पर अकेले रह रहा था वो। So every day we brought him prasad morning and evening. हमने हर दिन सुबह शाम जो है उनके लिए प्रसाद पहुंचाया। And I had our ladies go and clean his house, और wash हमारे his dishes. और हमारी जो माताएं थीं, जो माताएं भक्त थीं, वो जाकर उनके घर में उनके घर का साफ सफाई करती थीं, उनके बर्तन मांजती थीं, Do his laundry, और उनके कपड़े साफ करती थीं, go and buy things for him. और उनके लिए जो भी आवश्यक चीजें वो खरीद कर ला कर देती थी। And he never forgot that. और वो कभी भी उनको भूल नहीं पाया जो उन्होंने उनकी मदद की थी। So, this is a true story. I Yes. didn't make it up. ये सत्य कथा है। If we show our love to the people, they will react over time. Maybe not right away, but over time. And they'll talk about it to other people also. अगर हम हर व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे और वास्तव में प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, तो उससे वो प्रभावित होते हैं, और सिर्फ वही प्रभावित नहीं होते, वो दूसरों को भी हमारे अच्छाई का वर्णन करते हैं। This is how Prabhupada spread the movement. और प्रभुपाद ने भी इसी प्रकार से इस संस्था को विश्व भर में फैलाया। In the beginning, he didn't have any money. शुरुआत में उनके पास कोई धन नहीं था, कोई पैसा नहीं था। He took a big risk.
opening up a small temple. बहुत रिस्क लेकर उन्होंने एक छोटा सा मंदिर जो है शुरू किया। It didn't have a kitchen. उसमें एक किचन भी नहीं था। His prasadam was he would buy 1 or 2 apples and cut it into small pieces. प्रसाद के रूप में खाली 1 या 2 सेब खरीदकर उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट कर वो बांटते थे। And give that prasad to the devotees. और वो प्रसाद वो Or the भक्तों को people, दिया they weren't करते थे। devotees, the people that came to his lectures. जो भी लोग उनके प्रवचन के लिए आते थे, जो अभी तक भक्त नहीं बने हुए थे, उन लोगों को ये प्रसाद बांटते थे। But what impressed the devotees was the love and the devotion, the friendship, and the warmth of Srila Prabhupada. जो वहां पर आने वाले लोग इस बात से प्रभावित हुए कि प्रभुपाद जी की कितनी भक्ति भावना है भगवान के लिए, और साथ ही साथ कितना दया है, कितनी साख्य भाव है, कितना उनके मन में करुणा है हर व्यक्ति के लिए जो वहां पर आता था। In the beginning, Prabhupada never talked about the rules and regulations of Krishna consciousness. प्रभुपाद ने कभी भी शुरुआत में कृष्ण भावना के जो यम और नियम है उसके बारे में कभी चर्चा नहीं की। And when people started, taking interest in the movement and started coming regularly, they're mostly boys and a few girls. At one point, one devotee asked him and said, Swamiji, they didn't say Prabhupada, they said Swamiji, are there any rules and regulations in Krishna consciousness? तो बहुत दिनों बाद एक लड़के ने, वहां पर बहुत सारे लड़के और कुछ लड़कियां आती थी प्रवचन सुनने, कथा सुनने, तो एक लड़के ने बहुत दिनों के बाद पूछा कि स्वामी जी क्या आपके कृष्ण भावना में कुछ नियम हैं? Oh, he said, by the way, there are some rules and regulations. उस समय प्रभुपाद ने कहा, अगर आप पूछ रहे हैं इसलिए बताते हैं कि हाँ कुछ थोड़े बहुत नियम हैं। I'll write them down on a piece of paper. हम उसे एक कागज पर लिख देंगे और आपको दे देंगे। You have a copy of that? Yes, we have a digital copy. Yeah. So he wrote down the 10 rules and regulations for living in a temple. तो उन्होंने 10 नियम दिए जो कि आवश्यक है उन लोगों के लिए जो मंदिर में रहना चाहते हैं। When the devotees looked at it, they were sorry they asked. जब भक्तों ने देखा कि क्या नियम है, तो जिस भक्त ने पूछा था उनकी दुर्दशा कर दी कि क्यों पूछा तूने। Anyway, that's the way Prabhupada spread the movement. It was not by dictate, you must do this, you must do that, this rule, that rule. No, it was by love that he spread the movement. प्रभुपाद ने कभी आदेश नहीं किया या कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं की, जो भी उन्होंने किया वो बहुत ही प्रेम से समझाकर करवाने का प्रयास किया। When there's love, you don't need rules. जहां पर प्रेम है वहां पर नियम प्रेम के अधीन हो जाते हैं। And when there's no love, you need rules. और जहां पर प्रेम नहीं होता है वहां पर सख्ताई से नियम का लागू करना आवश्यक हो But जाता you है। can't force the rules in the beginning. You have to begin with love and you have to maintain the love. Then they will also accept the rules. तो प्रेम से ही शुरुआत करनी है और प्रेम के ही आधार सारी प्रक्रिया में होनी चाहिए, और जब ऐसा हम करते हैं तो सामने वाला आपके नियमों को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। But after you establish the temple and the rules, if there's no love, then you lose the people. Because they came for love, they didn't come for rules, they came for the love. और फिर अगर आप एक बड़ा मंदिर बना देते हो और फिर वहां पर आप नियमों पर ज्यादा जोर देते हो और प्रेम भूल जाते हो, तो जो लोग वहां पर प्रेम ढूंढते हुए आए थे, और हर कोई खाली प्रेम ढूंढते हुए आता है, वो धीरे धीरे उस मंदिर से दूर जाने लगेंगे। It is impossible to develop genuine love. सही में किसी से प्रेम करना उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, वो असंभव के समान है। Without Krishna. लेकिन कृष्ण अगर है तो संभव असंभव भी संभव हो जाता है। You learn what real love is when you come close to Krishna. जैसे जैसे आप कृष्ण के करीब आते हैं आपको पता चलता है कि वास्तव में प्रेम कैसे किया जाता है। You don't learn about love by reading books, going to movies. They have these movies about love. That's not teaching you love. ये सारे पिक्चर जिसमें दिखाया जाता है कि कोई एक दूसरे से प्रेम कर रहा है, इससे आप प्रेम करना नहीं सीखते हो, ना ही आप किताब पढ़ने से प्रेम करना सीखते हो। But when you're a little boy or girl and you hurt yourself and your mother takes you in her arms and hugs you and comforts you,
I would say very nice things to you, that defines who you are the rest of your life. You can never forget it. अगर समझना है तो उदाहरण दिया गया है कि जब आप छोटे बच्चे हो या बच्ची हो और आपको कहीं चोट लग जाती है, तो जिस प्रकार से आपके पालक जो माता हैं पिता हैं जो आपको उठाकर प्रेम से आपको सराहते हैं, वो चीज़ जीवन भर आपके साथ रहती है और वही आपके चरित्र बनाता है. So I'm going to stop there. I get too emotional. I was talking about these things. तो अब यहाँ पर रुकते हैं. महाराज जो हैं थोड़ा सा भावुक हो रहे हैं, तो यहाँ पर रुकते हैं. आप सब लोग जो हैं महाराज से आशीर्वाद ले सकते. All glories to Srila Prabhupada ki jai. जय. Jai. Thank you very much. No, you can. You know who the people are. I don't know who they are. There's only a few. So. Okay. Anyway, I wrote a little book. It's called Defending Prabhupada's Words. हरे कृष्णा. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर महाराज जी ने अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी हुई है जो स्वयं उनके विचार हैं कि कैसे प्रभुपाद जी की सेवा और प्रभुपाद जी ने जो वचन प्रदान किए हैं उसका पालन करना है. महाराज जी यहाँ पर अपने हाथों कुछ ही पुस्तकें हैं. कृपया करके पुस्तक अगर आप ले रहे हैं तो इसलिए लीजिए कि आप पढ़ेंगे और दूसरों को बांटेंगे, नहीं तो जो पढ़ सकता है उसे पुस्तक लेने दीजिए और फिर आप उससे ले लीजिएगा. What is this book about? तो इस पुस्तक में क्या दिया गया है महाराज बता रहे हैं. बैठ जाइए. There are some people now in ISKCON and outside ISKCON that say that Prabhupada wrote things that are not exactly shastric statements that are insulting to women, to like people who are homosexuals, to also basically saying inappropriate things that are opinion and not shastric. तो इस पुस्तक में प्रभुपाद जी की जो वाणी है उसको वो कैसे सिद्ध वाणी है और सही वाणी है ये बताया गया है. और जो भी आज के समय में पाश्चात्य देशों में और कुछ हमारे यहाँ पर भी भारत में भी कुछ लोगों को लगता है कि प्रभुपाद जी की वाणी में कुछ कमी है, तो महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है और वो सिद्ध कर रहे हैं. So I analyze all those statements that are supposed to be, as we say in English, homophobic or misogynist. तो ऐसे जहाँ पर भी वाणी है जहाँ पर ऐसा प्रकट हो रहा है कि जो अलग अलग वृत्तियाँ होती हैं, मानव वृत्तियाँ होती हैं, जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो किन्नर होते हैं इत्यादि होते हैं, तो प्रभुपाद जी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभुपाद जी ने कठोर शब्द का प्रयोग किया उनके लिए, या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जहाँ पर स्त्रियों के लिए जो है उन्हें दबाए रखने का प्रयास किया गया. तो ऐसी बात नहीं है, ये सिद्ध कर रहे हैं. But I demonstrate that everything he wrote is supported by Shastra. It wasn't his opinion. It's supported by just Shastra, and I quote the Shastric quotes. And in the beginning, I have a statement by Prabhupada, and he says, all our books, meaning all the books he wrote, they are not mental speculation. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के एक वाणी यहाँ पर पुस्तक के ऊपर है जो कहती है कि जो भी सारी जो हमने किताबें दी हैं या लिखी हैं वो मनगढ़ंत बातें नहीं हैं. Whatever I have learned from my Guru Maharaj, I am presenting it. जो भी हमारे गुरु महाराज से हमने सीखा है हम सिर्फ उसे प्रस्तुत कर रहे हैं. That's all. बस उतना ही. So whatever little success I have got, तो जो थोड़ा बहुत यश हमें प्राप्त है जीवन में, it is due to this process. ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने गुरु आज्ञा का पालन किया. That I do not present anything which is created by me. मैं कुछ भी ऐसा प्रस्तुत नहीं करता हूं जो मैंने स्वयं तैयार किया है, बनाया है. That is the secret of success. यश प्राप्त करने का यह सूत्र है. Remain always a servant of your spiritual master. हमेशा अपने गुरु के दास और विनम्र दास के रूप में रहना चाहिए. And present the thing as you have heard it from him. और जो भी आप प्रस्तुत करो, जो भी आप विचार व्यक्त करो,
वो वैसा ही होना चाहिए जैसे कि उन्होंने आपको सिखाया है। You will be spiritual master also. ऐसे करने से आप भी उस परंपरा में गुरु बन जाओगे, This is the secret. और ये रहस्य है। So he wrote this on his Vyas Puja lecture by Prabhupada in London, August 22nd, 1973. 1973 अगस्त 20 तारीख को प्रभुपाद जी ने, जो कि उनका व्यास पूजा था अर्थात उनके जन्म दिवस तिथि थी, उस दिन उन्होंने ये लिखा था। So there are a few mistakes in this because this is not the final edition. I wanted to have at least 50 of these books when I came to India to give them out to some people. But it's been corrected now. Now the real edition is going to take place, and it's printed by Subha Vilas Prabhu. So there are a few misspellings and things like that. So you can ignore that and just read it. Yeah. So it's free. I'm not coming here to sell books. All these books that I print are free. So, and we only have a few, so whoever gets the book, after you read it, give it to somebody else who want to read it. Okay. Hare Krishna. तो ये बिल्कुल मुफ्त है। इस बुक में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं क्योंकि बहुत जल्दबाजी में इसे प्रिंट किया गया था, क्योंकि महाराज चाहते थे कि ये जो 2 सप्ताह भारत में इसमें इसे वितरण करें यहाँ पर हम सबको। अब नया जो कॉपी आने वाला है प्रिंट होकर, उसमें ये सारी त्रुटियां जो है उसे सुधार दी गई हैं, तो त्रुटियों की तरफ मत देखिए। और महाराज जी यहाँ पर पुस्तक वितरण करके पैसा कमाने नहीं आए हैं, वो मुफ्त में इसे बांटना चाहते हैं। कृपया करके वही भक्त ले जो इसे पढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे वो दूसरों को दे जो पढ़ना चाहते हैं। So anybody wants, they can come and take. अगर कोई चाहता है तो कृपया करके यहाँ से आकर आप ले जाएं। But share it after you read it. महाराज I बार don't बार have ये any बात more. महाराज बार बार कह रहे हैं क्योंकि कुछ ही प्रतियां हैं, कृपया करके दूसरों के साथ इसे बांटें, अर्थात आप पढ़ें और दूसरों को दें, और कृपया करके इसे फाड़िए मत, दूसरों को आधा अधूरा किताब मत दीजिएगा। Srila Prabhupada ki jai. Gaura Pemanandi Hari Bol. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutali Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namani. Namaste Saraswati Devi Guru Mani Bacharani Nivasisa Hari Bol. इंग्लिश में है, अंग्रेजी में, फिर से बता रहे हैं, इंग्लिश में है, अंग्रेजी में है, तो जो अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, वही कृपया करके किताब लीजिए, और जो नहीं जानते हैं उनको आप हिंदी में अनुवाद करके बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ा। हरे कृष्णा, बैठ जाइए थोड़े से। हरि बोल, हरि बोल, बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। हरे कृष्णा। तो संध्या समय 6:30 बजे महाराज जी का गौर कथा रहेगी पुनश्च। तो सभी भक्तों से विनंती है, हरे कृष्णा, संध्याकालीन पुनश्च सत्संग है, तो केवल अभी 2 ही सुविधा संधि बची हुई है। आज का ही संधि है और कल का रहेगा, तो दुर्लभ लाभ है हरि कथा का महाराज जी के मुख कमलों से। तो संध्या काल हरि कथा 6:30 बजे यहीं पर। और जो महाराज जी के शिष्य हैं, कृपया थोड़ी देर के लिए यहीं पे रुक जाइए, आपको कुछ बताना है। हरे कृष्ण। और कल जैसे महाराज जी ने कहा कि कल सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम जो रहेगा उसमें महाराज जी शामिल होने वाले हैं, तो वो जो लाभ हमें लेना है, तो इसके लिए आप आमंत्रित है, ज़रूर आइएगा सुबह मंगल आरती के लिए, और तत्पश्चात हरिनाम जप।
हरे कृष्ण। तो जो अन्य भक्त प्रसाद के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, जो महाराज जी के शिष्य हैं, कृपया 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुक जाइए। अन्य भक्त प्रसाद के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जिन्होंने महाराज से प्रथम दीक्षा ली है, द्वितीय दीक्षा ली है, कृपया यहाँ पर रुकें। अगर आप यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपया रुकें।